আজকে আমরা ডিসকাসিং করবো যে স্ক্যানিং, ঠিক আছে। সো দেখো, আমাদের এথিক্যাল হ্যাকিং এ বা এবার টকিং আমরা পেন টেস্টিং, সো সবার আগে তোমাকে জানতে হবে যে স্ক্যানিং বা নেটওয়ার্ক মেট্রোলজি খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ঠিক আছে। If you don't know that how the network work, how to find the IP of a system or IP of within a network, then কিন্তু তাহলে আমরা পেন টেস্টিং এ কিন্তু খুব একটা বেশি আমরা স্টিক করতে পারবো না, বিকজ as a pen testers, একটা network scanning or if you're talking about the web scanning is a very important part of our pen testing. Okay, so let's suppose that কি আমরা একটা নেটওয়ার্কে কানেক্টেড আছি, ঠিক আছে। সো আমি যদি দেখাই as an example, এটা একটা রাউটার, ওকে, and then different system, different host machine or different types of system like computer, laptop, mobile phone, okay, different system এই রাউটারটার সাথে কানেক্টেড, and same as like as a hacker machine আমাদেরও ডিভাইস এটার সাথে কানেক্টেড, ওকে। সো এবার লেটস সাপোজ আমি বলছি যে এটা হচ্ছে আমার টার্গেট, ঠিক আছে। সো আমি যদি প্রপারলি নেটওয়ার্ক স্ক্যানিং করতে না পারি, দেন আই কান্ট এবল টু ফাইন্ড আউট দ্য টার্গেট, ঠিক আছে। কারণ একটা নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মধ্যে যখন আমি ঢুকবো অ্যাজ এ হ্যাকার, যখন আমি একটা নেটওয়ার্ক সিস্টেমে কানেক্টেড হবো, তো অনেকগুলো ওখানে সিস্টেম থাকে বা প্রচুর সিস্টেম ওখানে থাকে, আসলে আমার মতন ওখানে প্রচুর সিস্টেম থাকে, রাইট। সো সেই সিস্টেমগুলোর মধ্যে আমার পার্টিকুলার যে টার্গেট, যে আমার মেন ভিক্টিম, তাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়। তো তার জন্যই মেনলি আমরা কি করি, আমরা নেটওয়ার্ক স্ক্যানিং পারফর্ম করি। হ্যাঁ অমিত বলো। Okay. No issue, no issue. Okay. So the first thing is that uh, whenever we connected in a network, okay. So as like us, there are lots of different systems also be connected in a network. So, okay. So for that reason only, we need to perform a network scanning. Okay. So now let's discuss about that, how we can able to perform the network scanning, because there are lots of different systems, there are lots of different types of um, network infrastructure or IP protocols. So how we can able to find out the particular target machine's IP, right? So for the first time, we need to find out that how we can able to find out our main victim machine's IP. Okay. So for that reason, first we need to perform a whole network scan to find out that what is my particular victim machine IP. Okay. So for that reason, what we can do? So for that reason, we can perform a ARP scan. Now, if I type, just simply type your terminal and then just simply type ARP dash scan and then space dash L. Okay. And now, if I just simply hit enter, then you can see there are lots of different IPs are showing over here. And this all the IPs, those who are connected in a network or a network where I have connected, a network where I have already connected, and from this network system, I can able to find out all the different systems IP. Okay. Now, actually, what's going on here? Okay, and what is the ARP? ARP means Address Resolution Protocol. Okay. So basically, if you're talking about a router, okay, let's suppose that this is a different types of system, right? This is a system one, then this is a system two, this is system three, this is system four, and ourselves this is a system or five. Okay. So whenever a device try to communicate to each other or try to perform a communication from one section to another section or from one network to another network, they need to be travel through this router, right? This one machine, he need to whenever he try to communicate with any device or any system or any network or any other places, first he need to be travel through this router, and then he can go outside, or he can go outside, or also he can go with different devices. Okay, but the main thing is that he need to be travel through this router. Okay. Now as a hacker,
What we perform at this section, right? This is called ARP scan. ARP means that Air Address Resolution Protocol. Now, every doctor or every, if I say like the main junction point, okay, it could be a junction point, it could be a router, it could be any type of um, like any type of server, okay. So every router, those who are perform this like this type of communication, or those who are manage this type of communication, they has their own they has their own like we can say um, record, okay. And this record, we can say this is the name is an ARP table or ARP catch or ARP record. Okay, now within this ARP record, what is contained? Basically, it contains nothing. It contains a basic two things. One is your IP, and another is your MAC address. Okay, like one thing is content IP and another content is MAC address. Okay, let's suppose that there's a one system whose IP is like 192.168.21.34. Okay. Now, of this IP, what will the MAC? It's like it looks like something. Okay, MAC address is something look like this, right? So, what will be the IP and what will be its MAC address? In this way, the ARP table is created. Okay. यानी कि एक आईपी के साथ उसका जो मैक एड्रेस होगा वो बस यहाँ पे मेंशन किया रहता है. Okay. So now in this way there are lots of devices are connected in a network, right? So every device has their own IP and own MAC address, unique MAC address, right? So every data just only about the MAC about the IP and its MAC ID MAC address will be listed over here. So now as a hacker, what we can do, we just simply go to the router and then we just simply try to catch this MAC table. If you got the MAC table, this MAC table or ARP table or this CAM table also we can say. If we able to catch this table, then we can able to gather all the information about the system, like how many systems connected in network. We can able to gather all the systems IP and their MAC address. Just simply, just going to visit on this router. Okay. So that is the thing we perform over here. That is called ARP scan space dash. স্যার Yes. স্যার ওটা তো তার মানে এআরপিটা একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে স্ক্যান করছে, ওটা সেম হ্যাঁ, নেটওয়ার্কের মধ্যে। exactly. We can't able to perform go outside. এটা তোমাকে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কেই আমরা পারফর্ম করছি এটা। আমরা এটা কিন্তু নেটওয়ার্ক পারফর্ম করতে পারছি না। আলাদা নেটওয়ার্কে পারফর্ম করার জন্য আমাকে কি আলাদা মানে ওই নেটওয়ার্কের মধ্যে ঢুকতেই হবে, ওটা কম্পালসারি? এক্স্যাক্টলি। তুমি যদি নেটওয়ার্কে স্ক্যান করতে চাও বা তুমি যদি কোনো নেটওয়ার্কের মধ্যে দেখতে চাও যে কতগুলো সিস্টেম আছে, তোমাকে ওই নেটওয়ার্কের সাথে এনি হাউ কানেক্ট হতেই হবে। ইটস কান্ট পসিবল তুমি বাইরে থেকে লাইক ফ্রম আউটসাইড ইউ কান্ট এবল টু পারফর্ম দ্য স্ক্যানিং। ধরুন স্যার আমার ধরুন আমার ল্যাপটপেই একটা মানে আমি যখন আমার উইন্ডোজ 7টা স্যার ভিএমওয়ারে ডাউনলোড হচ্ছিল না। হ্যাঁ, আমার স্যার উইন্ডোজ 7টা এতে ডাউনলোড আছে ওই ভার্চুয়াল বক্সে। আমার ভার্চুয়াল বক্সে স্যার উইন্ডোজ 7 যখন আমি নেটওয়ার্ক মানে এটা আইপিটা সার্চ করছি, যখন ওখানে দেখা যাচ্ছে আইপি কনফিগে 10 ডট সামথিং দিয়ে 10.20 ডট সামথিং, আর আমার ওখানে ভিএমওয়ারে আমার কালি আইপিটা স্যার মানে 192 ডট সামথিং। আমাদের দুটোই আলাদা নেটওয়ার্কই হয়ে গেল। তাহলে তো স্যার আমি যখন স্ক্যান করছি শুধুমাত্র আমার স্যার পোর্ট ওপেনটা দেখাচ্ছে, কিন্তু কিছু দেখাচ্ছেই না ওখানে। ওটা কি কোনো মানে ওর কি কোনো আছে মানে স্ক্যান করার কোনো রুলস আছে, মানে এমনি করা যাবে কি এটা? না দেখো, স্ক্যানিং করার সিম্পল আমাদের যে ভোটারের কার্ড মেশিন, সে বেসিক্যালি স্ক্যান কিভাবে করে, তুমি যদি নেটওয়ার্ক স্ক্যান করতে হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু ফার্স্ট তোমাকে এই আইপি লিস্ট ও কি করে কালি মেশিন রাউটারের কাছে যায়, যেটা তোমার যেটা সবথেকে নিয়ারেস্ট রাউটার বা যার সাথে তুমি কানেক্টেড আছো, সে কি করে ওই এআরপি টেবিলটাকে ক্যাচ করে নেয়। আর ওই টেবিলের ভিতরে যা যা লিস্ট থাকে, যে আইপি থাকে, সেগুলোকে কিন্তু ও ডিরেক্টলি তোমাকে দেখায়। মানে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই মুহূর্তে আমাকে এখানে যেগুলো আইপি দেখাচ্ছে সব দেখো 10 ডট সিরিজেরই আইপি আছে, কিন্তু একটা 10-এর বাইরে নেই, কারণ আমি যে নেটওয়ার্ক কানেক্ট রেখেছি সেই নেটওয়ার্কে সব 192.168.10।
यानी कि /24 মানে এই 192.168 কিলো.6 এই সিরিজটা কিন্তু আছে বুঝতে পারলে এখানে কিন্তু একটা কিন্তু তুমি বাইরে পাবে না মানে লাইক 15 or 14 or like as the 100 হ্যাঁ 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 বলো বলো सर एक्चुअली वो ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने अपना लैब सेटअप है जो काली, वो उन्होंने शायद वर्चुअल बॉक्स पे किया है और विंडोज 7 को इसमें किया है VMware पे। अब ये क्या हो रहा है, उनका लोकल मशीन और ये काली दोनों अलग अलग नेटवर्क पे हो जा रहे हैं। अब भाई एक काम करो, उसकी सेटिंग पे जाओ, वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाओ, नेटवर्क सेटिंग पे उसको ब्रिज मोड पे डाल दो नेट से हटा के, तो फिर क्या होगा, आपके फिजिकल नेटवर्क का IP मिल जाएगा। हाँ ब्रिज मोड पे डाल दिया, लेकिन वो जो सेम आईपी है ना वो नहीं मिल रहा मेरे को। नहीं आप एक काम उधर पे नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब नो इंटरनेट दिखा रहा है उधर पे। ओके नहीं नहीं देखो एक चीज ये होता है कि ब्रिज मोड में डालने के बाद ही ना हमें एक चीज दिखाता हूँ आपको হ্যাঁ স্যার ব্রিজ মোডে ডালার পরেও মানে দেওয়ার পরেও স্যার আমাকে নো ইন্টারনেট দেখায় ওটা। देखो अनेक समय है कि रुको मैं बताता हूँ देखो ब्रिज मोड में बेसिकली हमारे जो वर्चुअल मशीन होता है ना लाइक जो VMware और जो वर्चुअल बॉक्स है उसमें ब्रिज मोड डालने के बाद ना आपका एक सेटिंग होता है जहाँ पे आपको अपना लैन कार्ड सेट करना होता है यानी कि ये कौन से सर ये LAN card के through आपको NI जो फिजिकल NIC कार्ड होता है उसको सेट करना पड़ता है ना सर, कि कहाँ से ब्रिजिंग करना है अपने को। एग्जैक्टली तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ऑटोमेटिक में रहता है ये जी, तो कभी जी। कभार क्या होता है कि आपके जो ऑटोमेटिक में होने से ना कभी नॉर्मली काम करता है बट कभी कभार क्या होता है कि आपके जो वर्चुअल मशीन है वो कंफ्यूज है यानी कि आपका जो वर्चुअल मशीन का जो एप्लीकेशन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आपको कौन सा लैन कार्ड कौन सा NIC कार्ड चूज करना होता है क्योंकि इतने सारे हैं और ऑटोमेटिक में ना ये बात कंफ्यूज हो जाती है कि आपको कौन सा चूज करना है जी तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे फिजिकली आपको मैनुअली एक कार्ड को चूज करना है जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरा जो वाईफाई कार्ड है मैंने उसको चूज कर दिया सो अभी इसके पास एक फिक्स्ड है कि नहीं उसको जब भी कम्युनिकेशन करना है थ्रू वायरलेस लैन कार्ड ही इसको चूज करना होगा यस एग्जैक्टली सर। ওকে স্যার ওকে স্যার। বুঝতে পারলে তো তোমাকে একটা কার্ড না এখানে ম্যানুয়ালি তোমাকে দিতে হবে কারণ অনেক সময় অটোমেটিক থাকে और ये आपको दोनों मशीन पे देना पड़ेगा। हाँ आपको दोनों मशीन पे ही लैन कार्ड सेम ही रखना होगा क्योंकि अगर आप दोनों लैन कार्ड अलग एक में वायरलेस कर दिए, एक में इथरनेट, तो फिर वो डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा ना सर। हाँ एग्जैक्टली ओके सर ठीक है अभी समझ में आया। इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं जब अपने VM में ब्रिज नेटवर्क करता हूँ, जो ब्रिज अडेप्टर है, नेटवर्क तो नहीं है, ब्रिज अडेप्टर है, तो उसमें मेरे को नाम आ रहा है ENO वाईफाई, फिर EN थंडरबोल्ट 1, थंडरबोल्ट 2। तो थंडरबोल्ट का तो कोई काम नहीं, तो मैं ब्रिज 0 पकड़ूं या फिर ENO जो बेस वाईफाई है उसको पकड़ूं? देखो जिसके थ्रू आप बेस communicate कर रहे हो अब थंडरबोल्ट के थ्रू अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो यानी कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू यूज करो तो आपको वो चूज करना है अगर आप नॉर्मल वाईफाई के थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल करते हो नॉर्मल डे टू डे तो आपको वो चूज करना है तो टेक्निकली मैं फिर बेस जो ENO 0 वाईफाई दिखा रहा है उसको सिलेक्ट करूंगा ना? एग्जैक्टली ठीक है। just one minute please भाई वो विंडोज 7 आपके में इंस्टॉल क्यों नहीं कर पाया आपने वर्चुअल बॉक्स पे, समझा नहीं मैं। विंडोज 7 तो वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो रहा है। ओके तो क्या नहीं हो पा रहा है? नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये देख रहा था कि ब्रिज मेरे यहाँ पे क्या है, अगर मैं ब्रिज नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आपकी बात अच्छा, नहीं। अच्छा। कोई और था जो जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा था, उन्होंने क्या किया, वर्चुअल बॉक्स पे किया, VM पे दूसरा किया है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि दोनों आपने एक में क्यों नहीं किया। VM पे मेरे कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा था। नहीं हो क्या चीज जाएगा कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा था? तो VM हमारा तो वर्चुअल बॉक्स में हुआ है। हाँ। आपने काली किस में रखा है भाई? खाली VM पे रखा है। VM पे रखा है और विंडोज 7 को आपने वर्चुअल पे रखा है, वर्चुअल बॉक्स पे। हाँ विंडोज 7 वर्चुअल बॉक्स पे। नहीं बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैंने तो दोनों एक ही में इंस्टॉल किया और मेरा सक्सेसफुली हो भी गया। VM पे मेरा तो 17.2 है ना, इसलिए VM पे कॉन्फ़िगर हो रहा है। और जो सैट ने जो दिया था ना वो बहुत पुराना वर्जन। नहीं सर ने पुराना वर्जन इसलिए दिया है भाई क्योंकि वो फिर लाइसेंस मांगने लग जाएगा आपको लेटेस्ट वर्जन में, दैट्स व्हाई कि सर ने पुराना वर्जन दिया है। सर ने बोला कि VM पे प्रॉब्लम होता है। अच्छा नॉर्मल आप लोग VM कौन सा इस्तेमाल करते हो, VMware प्रो वर्जन या फिर नॉर्मल? नहीं सर मैं तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैंने प्रो वर्जन यूज करता हूँ। ओके तो लेटेस्ट है कि पुराना? लेटेस्ट है सर। ओके दैट्स इट। तो VMware नॉर्मल ना अगर VMware वर्जन इस्तेमाल करो तो कोशिश करो कि लेटेस्ट ही इस्तेमाल करें क्योंकि उसके साथ मतलब ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होता है। अगर आपका लाइसेंस फी का कोई इशू है तो आप एक बार ग्रुप में पिंग कर दीजिएगा, मैं लाइसेंस फी शेयर कर दूंगा VMware का।
ओके सर, ओके। सो नॉर्मली क्या होता है कि कोशिश कीजिए कि एक नेटवर्क पे यानी कि सेम वर्चुअल मशीन पे ही करना, तो मतलब ज़्यादा बेहतर होता है। अलग अलग करने से इशू नहीं होगा, मतलब बट कभी कभार क्या होता है कि वो मतलब थोड़ा सा आईपी को कैच करने में थोड़ा सा इशू होता है कभी कभार। जस्ट मिनट, 1 मिनट जस्ट। प्लस अगर आप अलग अलग उसमें बना रहे हो ना, एक वीएम पे एक वर्चुअल बॉक्स पे, तो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि आपका यूटिलाइजेशन हाई जाएगा उस टाइम पे। ओके। सो देखो यहाँ पे कि तो हम लोग इस तरह से एक नेटवर्क को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो कि ये जो एआरपी स्कैन है ना, ये नॉर्मली बाकी सारे नेटवर्क स्कैनिंग से ज़्यादा फास्ट होता है। कैसे? देखो, नॉर्मली ये एक लौता एआरपी स्कैन नहीं है जिसके द्वारा आप नेटवर्क के अंदर जो भी आईपी वगैरह है वो सबको फाइंड कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो नेट डिस्कवर। ओके, ये भी एक दिस आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टेक्निक where also we can able to find out the different types of IP those were entered in our network. But the main problem is that कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। क्यों स्लो है? एंड दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मैं समझाता हूँ। देखो ये बस इतने सारे आईपी को फाइंड कर पाया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एआरपी स्कैन करता हूँ, देखो कितने जल्दी ये इतने सारे डिवाइस को ये फाइंड कर लेता है ना। सो द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि एआरपी स्कैन क्या करता है, एज ए हैकर की मशीन हम लोग राउटर के पास जाते हैं एंड इससे हम लोग क्या करते हैं, एआरपी टेबल को कैप्चर कर लेते हैं। तो राउटर को पता होता है कि कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होता है हमारे नेटवर्क पे, या फिर कौन किससे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसका आईपी क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो राउटर को पता हो रहा है। तो ऐसे आकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राउटर के पास जाते हैं, राउटर के थ्रू हम लोग सारे एआरपी टेबल को कैप्चर कर लेते हैं एंड जो भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है वो सबको हम लोग क्या करते हैं, एक बार में एक एआरपी ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करते हैं, ठीक है। सब लोग एक ही साथ रिप्लाई करेंगे एंड जो जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं सबका लिस्ट यहाँ पे आ जा रहा है कि हाँ ये सिस्टम ऑन है, एंड जो जो रिप्लाई नहीं दे रहा है तो वो सिस्टम ऑन नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही जल्दी फास्ट हम लोग आईपी को कैप्चर कर पाते हैं। बट इन द सेम टाइम इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस नेट डिस्कवर कमांड, नेट डिस्कवर से क्या होता है कि आप नेट डिस्कवर से फाइंड कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, देखो अगर मैं नेट से ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे चलाता हूँ तो इस जगह पे थोड़ा सा देखो कि इस सेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम क्या कर रहा है कि ये एआरपी पैकेट को तो थ्रो कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये मैनुअली हर एक रोटेशन को ये मतलब मैनुअली ये क्या कर रहा है, 10.1 एक पैकेट सेंड किया, 10.2 एक पैकेट सेंड किया, 10.3 मैं क्या करूँ, मैं बस ऐसे लाइक जैसे आपका जो वॉच होता है ना, जैसे सेकंड का काटा मिनट का, मैं बस एक एक रोटेशन लेता हूँ एंड मैं पैकेट सेंड करूँ, एक एक रोटेशन में ले रहा हूँ पैकेट सेंड करो। अब उस रोटेशन पे वो आईपी पे सिस्टम अवेलेबल है या नहीं, अगर मुझे रिप्लाई मिला तो सिस्टम अवेलेबल है, अगर मुझे रिप्लाई नहीं मिला तो सिस्टम अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स वाई ये बहुत स्लो है। मैं यहाँ पे मैनुअली हर एक डिवाइस को मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो दैट इज द रीजन कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। सो कभी भी अगर आप किसी भी नेटवर्क से जुड़ते हो तो आपको सबसे पहले आपको एआरपी स्कैन ही करना होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली राउटर से डेटा ले लेते हैं एंड एक ही बार में सबको हम लोग रिक्वेस्ट भेज देते हैं। क्लियर गाइस? ओके, सो अब देखो, नाउ इफ आई टॉकिंग अबाउट मेरा टारगेट, सो यहाँ पे ये रहा मेरा टारगेट, ठीक है।
अब मैं अगर इस टारगेट को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, मैं सिंपली इसका आईपी को कॉपी कर लेता हूँ। नाउ अब मुझे ये जो आईपी है इसके ऊपर डिटेल में मुझे स्कैन करना है। तो गाइस कोई बता सकते हैं कि मैं अगर मुझे एक आईपी मिला है उसको अगर मैं डिटेल में स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं मुझे कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए? Nmap। Nmap। एग्जैक्टली। तो मुझे Nmap इस्तेमाल करना चाहिए। सो देखो Nmap यानी कि नेटवर्क मैपर, ठीक है। Nmap बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टूल है फॉर पोर्ट स्कैनिंग एंड डिफरेंट टास्क के लिए। बट Nmap सबसे पहले बनाया गया था पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए। डिफरेंट पोर्ट्स को हम लोग डिफरेंट तरह से स्कैन कर सकते हैं Nmap के द्वारा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि Nmap इकलौता ही टूल है जिसके द्वारा आप Nmap नेटवर्क स्कैन कर सकते हो, बट Nmap बहुत ज़्यादा ओल्ड टूल है, यानी कि काइंड ऑफ 90s के समय से Nmap टूल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, फेमस हो चुका है, ठीक है। तो दरअसल हम लोग Nmap को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। Nmap के अलावा भी आपके बहुत सारे टूल्स है, लाइक hping3 भी एक बहुत अच्छा टूल है। बट hping3 का बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि हर एक टूल का ना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। Nmap से बहुत कुछ कर सकते हो, hping3 से भी बहुत कुछ कर सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एज वेल। इनमें से बहुत कुछ कर सकते हो, बट Nmap जो टूल है ये नेटवर्क या फिर बोल सकते हो कि आईपी को स्कैन करने में या फिर पोर्ट स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है ये Nmap, ठीक है। एंड जो hping3 है वो भी पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, वो भी नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं, बट hping3 ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है आपके पैकेट को क्राफ्ट करने के लिए। हम लोग hping3 से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट क्राफ्ट कर सकते हैं, एंड Nmap से हम लोग बहुत अच्छे से नेटवर्क को या फिर किसी भी सिस्टम के पोर्ट्स को हम लोग डिफरेंट तरह से स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप थोड़ा सा डीप जाओगे Nmap पे, तो Nmap से हम लोग ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रूट फोर्स लाइक SSH ब्रूट फोर्स, FTP ब्रूट फोर्स, DDoS अटैक, ये भी कर सकते हैं Nmap के थ्रू। इवन हम लोग Nmap के थ्रू SQL इंजेक्शन भी कर सकते हैं, बट हर एक का अपना स्पेशलाइजेशन होता है। सो Nmap पोर्ट स्कैनिंग में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो इस सिचुएशन में हम लोग Nmap के थ्रू इस आईपी को स्कैन करेंगे। इवन अगर आप चाहते हो, इवन आप अगर चाहते हो तो आप Nmap के थ्रू भी होल नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, एंड आप पता कर सकते हो कि उस सिस्टम में कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो आप कैसे पता करोगे? देखो सबसे पहले आप काम करोगे कि अपना सीरीज देख लोगे, यानी कि आपका जो आईपी का सीरीज है वो आप चेक कर लोगे, है ना। आपका आईपी का सीरीज देख पा रहे हो कि 10.3 है। तो मैं क्या करूँगा, Nmap 192.168.10.3, ठीक है। ये मेरा सिस्टम का आईपी है ना। तो अभी आपको क्या इस्तेमाल करना है, अभी आपको एक CIDR इस्तेमाल करना होगा, CIDR 24, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतना तक ये स्टिल रहेगा, बस रोटेशन 3 पे ही चलेगा, 3 टू अप टू लाइक 0 टू अप टू 225 सॉरी 255 तक ये रोटेशन चलेगा, ठीक है। एंड देन आपको देना होगा -SN। अब ये क्या है, ये ऑप्शंस, हम लोग धीरे धीरे ऑप्शंस को बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आते हैं, देन आर्गुमेंट्स आते हैं, ठीक है। हम लोग सभी एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है नो पिंग स्कैन, ठीक है, या फिर इसे आप बोल सकते हैं कि होस्ट डिस्कवरी स्कैन भी इसे कहते हैं, -SN का मतलब, ओके। सो नाउ इफ आई जस्ट क्लिक एंटर, अब देखोगे कि ये पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा। एंड देखो इसने क्या फाइंड किया, बस आईपी को ये फाइंड किया, आईपी एंड अलोंग विद देयर मैक एड्रेसेस, ठीक है। तो आप Nmap के थ्रू भी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से नेटवर्क को फिर किस टूल से स्कैन करना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ओके। ओके सो नाउ अभी अगर हम लोग Nmap की बात करते हैं, तो ये जो टूल है Nmap, देख पा रहे हो यहाँ पे कि इट कंटेन लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। हम लोग हर एक ऑप्शन को कोशिश करेंगे डिस्कवर करने, क्योंकि Nmap बहुत एक वास्ट एक टूल है, बट ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी टूल है। तो इसके द्वारा आप किसी भी नेटवर्क को, किसी भी सिस्टम को इजीली स्कैन कर पाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि Nmap से अगर मुझे किसी भी सिस्टम को स्कैन करना है, सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, जो हम लोग ने टारगेट आईपी लिया था बस सिंपली उस आपको पेस्ट कर देना है Nmap के बाद, Nmap देन स्पेस देन योर टारगेट आईपी, जस्ट सिंपली पेस्ट लाइक दैट, ओके। एंड देन जस्ट सिंपली हिट एंटर।
हाँ नहीं यार, सर ये जो टारगेट आप आईपी आपने उठाया है, ये क्या रैंडमली आपने उठा लिया हाँ या आपको नहीं पता नहीं, कैसे चला? देखो ऑब्वियसली फर्स्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, राइट? हम्म। ऐसे हम लोग सबसे पहले देर सीखे थे ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, आपको टारगेट की इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा। तो मुझे पता था कि मेरा जो टारगेट है वो इस नेटवर्क में है, ओके। बट कहाँ पे है मुझे नहीं पता था। सो फॉर हम्म। दैट रीजन फर्स्ट हमने नेटवर्क को स्कैन किया, देन हम्म। हम लोगों ने देखा कि टारगेट है। ठीक है, अब देखो, अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता कि यही आपका टारगेट है या नहीं। हम्म। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि यही मेरा टारगेट हो सकता है या नहीं। सो हम्म। फॉर दैट रीजन आप क्या कर सकते हो, आप पूरे होल नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो इन मैप के थ्रू, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। देखिए ओके। ये 1 घंटा 2 घंटा भी ले सकते हैं ये पूरे नेटवर्क को, हर एक सिस्टम को स्कैन करने पे, उसका पूरी डिटेल्स निकालने में। ओके। आप कर सकते हो, एक ही बार में कर सकते हो। कैसे? देखो, जस्ट सिंपली आपको CIDR ऐड कर देना है, जी एंड जी। देन इट विल स्टार्ट स्कैन ऑल द सिस्टम्स अराउंड दैट, एंड मतलब ये देन एक एक आईपी को स्कैन मार लेगा ना सर, जो भी लाइव है अभी करंट नेटवर्क एग्जैक्टली पे? एग्जैक्टली पूरा सिस्टम का, पूरा नेटवर्क का जो भी सिस्टम अलाइव है सबको स्कैन करेगा, एंड देन सबका IP पोर्ट सबको बताएगा। ओके, तो वहां से सर मेरे को मतलब फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा कि मेरा टारगेट कौन है? एग्जैक्टली तो क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक देख के पता कर सकते हो ना कि ये जी मेरा जी। सिस्टम है, फिर मेरा ये टारगेट था, इसका नेचर यही था, राइट? यस 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 सर, राइट। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सो दैट्स वाई मैं आपको डायरेक्टली ये दिखा रहा हूँ। ये इट टुक्स अराउंड लाइक 1 आवर 2 आवर, ऐसा बहुत टाइम ये ले जी जी। सकता है। ओके ओके सर। Okay, so in this way you can able to find out our target. So now अगर मैं आपको विंडोज मशीन में दिखाऊँ तो ये देख पा रहा हूँ कि ये एक मेरा विंडोज मशीन है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको IP दिखाऊँ इसका सिंपली, तो ये देख पा रहा हूँ 192.168.10.5 एंड স্যার আপনার কাছে উইন্ডোজ 7 এর আইএসও ফাইলটা আছে? ISO फाइल मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा भाई आपको गूगल ड्राइव पे डाल के अपने। ওকে ওকে ঠিক আছে স্যার, তাহলে हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर, या बट दिस इज नॉट एन ISO फाइल। देखो एक्चुअली ये ISO फाइल, ये VMware फाइल है एक्चुअली। मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर, कोई इशू नहीं। ओके ओके ओके, तो देख पा रहे हो कि 10.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मेरा स्कैन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी जो आपने बताया कि पूरे नेटवर्क को कैसे स्कैन है, तो अगर /24 डालोगे ना तो ऐसे सारे सिस्टम की पोर्ट्स आपको ऐसे लाइन बाय लाइन दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि मुझे क्या क्या मिला, पोर्ट, स्टेट एंड सर्विसेज। फर्स्ट आपको जब भी Nmap इस्तेमाल करोगे तो आपको Nmap में कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? फर्स्ट Nmap ओनली फर्स्ट 1000 पोर्ट्स को ही स्कैन करेगा, ठीक है। Nmap हमेशा बाय डिफॉल्ट हमेशा फर्स्ट 1000 पोर्ट को ही स्कैन करता है। उन 1000 पोर्ट में जो जो पोर्ट अवेलेबल है उसी को स्कैन करके आपको बताएगा, ठीक है। एंड देन फर्स्ट बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 डिटेल्स आपको देगा ये, ठीक है। पोर्ट, स्टेट एंड सर्विस। नाउ पोर्ट ऑब्वियसली यू ऑब्वियसली नो दैट व्हाट इज द पोर्ट, राइट? हमारे नॉर्मली सिस्टम पे वर्चुअली कितने सारे पोर्ट होते हैं? सर क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिएगा। पोर्ट्स हमारे वर्चुअल सिस्टम में वर्चुअली कितने सारे पोर्ट्स होते हैं? तो एक तो वो मुझे पता था, टोटल पोर्ट्स 65,335 ऐसा कुछ था, या 535? एग्जैक्टली 65,535, 535, राइट। 65,535 535। ये हमारे वर्चुअल पोर्ट्स हैं, ठीक है। सो इतने सारे वर्चुअल पोर्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, Nmap के थ्रू स्कैन करते हैं, पता करते हैं कि विच पोर्ट्स इज अवेलेबल ऑन दैट सिस्टम, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सारे पोर्ट्स सिस्टम पे ऑन होगा, ठीक है। अब देखो, पोर्ट अवेलेबल रहना एंड ऑन होना, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। यानी कि एज एन एग्जांपल मान लो कि आपके घर पे रूम अवेलेबल है बट उनमें लोग रह रहे कि नहीं रह रहे, दैट इज नॉट एन मैंडेटरी, है ना। तो एज सेम एज लाइक कि किसी भी सिस्टम पे मैंडेटरी इतने सारे पोर्ट्स होता है, नॉट अ मैंडेटरी बट 99% आज के टाइम में अगर जितने भी सिस्टम लाइक आपके लैपटॉप हो, फोन हो, ठीक है, कंप्यूटर हो, PC हो, सर्वर हो, सब में ये पोर्ट्स अवेलेबल होता है। हाँ, इतने सारे पोर्ट्स अवेलेबल होता जरूर है बट ये मैंडेटरी नहीं कि सारे पोर्ट्स ही ऑन होगा, राइट।
So for मतलब ऑन that, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ओपन ऐसा बोल रहे हैं? not open in the sense, on in the sense, हाँ, open आप कह सकते हो, on in the जैसे sense कि अब मैं उसे पोर्ट इस्तेमाल ओपन है, कर रहा पोर्ट हूँ। क्लोज है बोलते हैं वही? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखो, ओके। ऑन इन द सेंस कि मैं उस पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं। ओके, if I use that port, then it will be open, or if I didn't use that port, then it should be closed. ओके, ऑन इन द सेंस होता है कि मैं उस पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं उस पोर्ट पे अवेलेबल जो भी सर्विसेज होता है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं। ओके, सो पोर्ट्स अवेलेबल होते इतने सारे, बट सारे पोर्ट्स को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, है ना। सो दैट वाई आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट क्या है उस पोर्ट का, कि वो ओपन है या नहीं है, वो क्लोज्ड है नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज दैट सर्विसेज। सर्विसेज इज लाइक कि विच सर्विस आर रनिंग ऑन दिस पोर्ट। देखो, अब ये जो सर्विस है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? देखो, इस चीज को समझना थोड़ा सा, कि सर्विसेज क्या होता है कि सर्विस हम लोग कोई भी सर्विस लाएंगे, जब मुझे पर्टिकुलर अगर एक स्पेशल सर्विस चाहिए, वो हम लोग एक एक पोर्ट के ऊपर रन करवाते हैं, राइट। जैसे आपका पोर्ट 80 के ऊपर एचटीटीपी सर्विस रन होता है, राइट। पोर्ट 21 के ऊपर आपका एफटीपी, 22 के ऊपर आपका एसएसएच रन होता है ना। अब बाय डिफॉल्ट एनमैप आपको जो भी डिटेल दिखाता है, लाइक पोर्ट 80, लाइक अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, जो भी आपका पोर्ट, जो भी आपका सर्विसेज आते हैं यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पोर्ट 80 का आपका सर्विस है HTTP, एंड ये जो सर्विस है ये पोर्ट 80 के ऊपर रन होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एनमैप ने जो स्कैन करके आपको बता रहा है ना, ये आपको थोड़ा समझ रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट एनमैप आपको जो भी डेटा दिखाता है, ये आपको ये दिखाता है कि पोर्ट 80 के ऊपर कौन सा सर्विस रन होता है। थोड़ा सा इस चीज को समझना कि बाय डिफॉल्ट एनमैप को एक बेसिक डेटा दिखाता है कि पोर्ट 80 के ऊपर कौन कौन सा सर्विसेज रन होता है। देखो, HTTP यहाँ पे दिखा रहा है, हाँ, HTTP इस स्कैनिंग का मतलब होता है कि HTTP पोर्ट 80 के ऊपर रन होता है। रन होता है इन द सेंस, अब देखो, एज ए हैकर हमें भी पता है कि पोर्ट को कैसे स्कैन किया जाता है, राइट। एंड एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम डेवलपर, एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें भी पता है कि हैकर्स कैन एबल टू फाइंड आउट आवर पोर्ट्स बाय nmap और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। तो वो लोग क्या करते हैं, एक सर्विस को किसी दूसरे पोर्ट के ऊपर भी रन करवा सकते हैं। मान लो एसएसएच का पोर्ट कितना है बताओ? 22। 22, राइट। सो बाय डिफॉल्ट एसएसएच पोर्ट 22 पे रन होता है। अब एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही कैन एबल टू डू कि पोर्ट 22 का एसएसएच सर्विस को वो पोर्ट नंबर 20,000 पे भी रन करवा सकता है। ही कैन डू, ओके। If he want, then he can easily shift the port number, okay, and वो पोर्ट नंबर को शिफ्ट करके 22 से वो 20,000 पे भी शिफ्ट करवा सकता है। एंड देन अगर आप nmap के थ्रू वो पोर्ट को फाइंड कर पाए, तो बाय डिफॉल्ट आपको nmap ये दिखाएगा कि पोर्ट नंबर 20,000 पे क्या रन होता है। वो बाय डिफॉल्ट ये नहीं दिखाएगा कि पोर्ट नंबर 20,000 पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे क्या रन कर रहा, मतलब उसने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है पोर्ट नंबर 20,000 पे। अगर आप nmap से थोड़ा सा इंटेंस स्कैन करोगे, थोड़ा सा डीपली स्कैन करोगे, तब आप पता कर सकते हो कि अच्छा पोर्ट नंबर 20,000 पे एसएसएच रन हो रहा है। हाँ बोलो। एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम पोर्ट नंबर 80 पे एफटीपी सर्वर भी चला सकते हैं ना, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि हमारे सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम पे जीरो से लेके 1024 तक ये जो पोर्ट नंबर होता है ना, 1024 सीरियली, 0 से लेकर 1024, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पोर्ट होते हैं। आप इसके अंदर कोई भी पोर्ट को छेड़खानी नहीं कर सकते, नहीं कि आप इसके अंदर कोई भी पोर्ट्स को मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, तो सिस्टम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। अब 1024 के ऊपर कोई भी पोर्ट ले लो, लाइक 1025 से लेके आप कोई भी पोर्ट ले लो, कोई भी पोर्ट को किसी पे भी असाइन कर सकते हो, बट 0 से लेकर 1024 जो पोर्ट्स होता है, ये थोड़ा सा क्रूशियल होता है फॉर द सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो सर्विस चलता है ये डिफॉल्ट रहता ही है, इसको चेंज हाँ, नहीं मतलब किया ये जाए। नहीं, आप चेंज तो कर सकते हो, बट अगर 80 पे आप एफटीपी चलाओगे तो एचटीटीपी किस पे चलाओगे? आपका एचटीटीपी तो इफेक्ट करेगा ना फिर। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इधर पे जो HTTP है ना, हाँ। पोर्ट 80 पे हम तो इधर पे एफटीपी भी चला सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिएगा तो। भाई उसको चेंज करना उतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हो।
वो बात तो अलग है, चेंज करने के बाद अलग है। वो मैं रजिस्ट्री में जाके चेंज करना होगा फिर। हाँ नहीं नहीं देखो, पोर्ट नंबर 0 से लेकर 1024 जितने भी पोर्ट्स आपके डिवाइस में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पोर्ट होता है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, बट इससे क्या होता है कि आपके डिवाइस में अदर सर्विसेज होते हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट अपने लिए रिजर्व रखता है ये पोर्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में सारा कुछ होता है, इफ यू वांट यू कैन डू एनीथिंग। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक सिस्टम का बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है ना, आप उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट करोगे उस टाइम। तो इसलिए बेहतर होता है कि जो भी सर्विस उसमें रन करवा रहा है उसको आप 1024 के ऊपर किसी भी पोर्ट में रन करवा दो, 4444, 10,000, 20,000, 30,000, किसी में भी आप रिलाय कर सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट विद इन 1024 के नीचे जो भी पोर्ट रन हो रहा है, कि जो भी मेरे इस 80, 135, 139 जो भी यहाँ पे रन हो रहा है ना, आप किसी को भी कहीं पे भी मूव करवा सकते हो, बस आप कोशिश करो कि 1024 के ऊपर ही वो पोर्ट हो। ओके, आप कर सकते हो, देखो आप 80 में आप FTP भी चला सकते हो, बट उससे क्या होता है कि 80 का बाय डिफॉल्ट नेचर जो होता है वो इम्पैक्ट होता है। आप देखो, अब हर एक सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट ना पोर्ट 80 या फिर FTP SSH नॉर्मली क्या होता है, देखो ऑन नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑन होता है। हाँ, अब विंडोज 7 में पोर्ट 80 का ज़्यादा काम नहीं होता है, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि विंडोज 7 एक सर्वर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 21 भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं होगा, नॉर्मली हमारे काम के लिए होता ही है। सो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस चीज़ को, हम लोग इसलिए क्या करते हैं, 24 के ऊपर कोई भी पोर्ट चूज करते हैं। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे जो भी सर्विस दिखा रहा है, ये सर्विस ये दिखा रहा है कि इस पोर्ट 80 में क्या रन हो रहा है। मान लो कि कोई एक हैकर ने क्या किया, पोर्ट नंबर 80 को वो पोर्ट 9000 पे सेट किया, तो आपको एक 9000 का पोर्ट भी यहाँ पे दिखाएगा, बट 9000 पे क्या रन होता है नॉर्मली वो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाएगा। आपको ये नहीं दिखाएगा nmap की वो एडमिनिस्ट्रेटर ने 9000 पे पोर्ट HTTP सर्विस को रन करवा रहा है। हाँ, आपको ये तब दिखाएगा जब आप थोड़ा सा इंटेंस स्कैन nmap के थ्रू करोगे। क्लियर गाइस? ओके, और एक चीज जो मिडिल पे आपको दिख रहा है कि स्टेट। अभी स्टेट है क्या? स्टेट 3 तरह के होते हैं, एक होता है आपका ओपन, क्लोज्ड, ठीक, एक आपका आता ओपन स्लैश, नॉट स्लैश एक्चुअली, पाइप, फिल्टर। ये तीनों स्टेट में आता है आपका ये स्टेट। ओपन का मतलब मतलब होता है कि ये पोर्ट ओपन है, क्लोज का मतलब है कि वो पोर्ट क्लोज्ड है, एंड ओपन फिल्टर का मतलब होता है कि पोर्ट ओपन तो है बट उसके आगे एक फायरवॉल का प्रोटेक्शन भी है, यानी कि एक फायरवॉल उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट में आपको, आई मीन तीनों अलग अलग स्टेट आपको मिल सकता है इस जगह पे, ठीक है। एंड उसके साथ ही आप अगर देखोगे तो इनमें आपको बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस ये आपको पता कर देगा। तो इस तरह से आप nmap के थ्रू डिफॉल्ट स्कैन एक कर सकते हो किसी भी एक आईपी के ऊपर या फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर। अब देखो ये आपको सर्विस दिखा रहा है, ठीक है, बट इतना सा इंफॉर्मेशन से आप किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे या फिर किसी भी सिस्टम को आप हैक नहीं कर पाओगे। इतना सा इंफॉर्मेशन आपको और भी ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। सो अभी हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, अभी हम लोग एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है आपका एस कैपिटल पी, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है कि ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो, ये यानी कि ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव इन द सेंस कि आप कैपिटल में एस लिख दोगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको स्मॉल में एस कैपिटल में बी आपको यही लिखना होगा, है ना। अभी एस बी का मतलब होता क्या है? एस बी का मतलब होता है आपका वर्जन स्कैन या फिर सर्विस स्कैन या फिर आप इसे सर्विस वर्जन डिटेक्शन ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे बेसिकली किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी सर्विस में क्या क्या सर्विस रन हो रहा है उसका वर्जन क्या है एग्जैक्ट वो हम लोग पता कर सकते हैं इस स्कैन के द्वारा। अगर मैं सिंपली एंटर करता हूँ, जस्ट मिनट, ये भी आपको रिजल्ट दे देगा। सर आप अपना स्क्रीन को थोड़ा
वो कर सकते हैं क्या? F11 दबा के थोड़ा वो कर दीजिए, जूम कर दीजिए ना। ओके ओके ओके, हाँ, अभी ठीक आ रहा है। अब ठीक है। जी सर, अभी ठीक है सर। ओके ओके, तो 42% हो चुका है। देखो इनमें स्कैन में अगर आप स्कैनिंग के दौरान अगर आप एंटर दबाते हो तो आपको ये रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि कितना परसेंट तक स्कैन हुआ है। ठीक है, अगर आप एंटर दबाते हो तो वो आपको दिख जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके, कोई बात नहीं, ये बैकग्राउंड पे रन होता रहे, हम लोग तब तक दूसरा आपको स्कैन दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ पैकेट। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ स्कैन हम लोग कैसे कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के स्कैन आप परफॉर्म कर सकते हो। कैसे? एक आपका स्कैन आता है जिसका नाम है आपका एस, कैपिटल एस। इसका मतलब है स्टिल स्कैन। देखो इसको बहुत सारा नाम है, इसका स्टिल स्कैन कहते हैं, इसे हाफ टीसीपी स्कैन कहते हैं इसे। ठीक है, इसका या फिर इसे सिंग स्कैन कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा अलग अलग नाम है। इसे आप हाफ टीसीपी स्कैन बोल सकते हो, स्टिल स्कैन बोल सकते हो। स्पेलिंग में थोड़ा सा शायद गड़बड़ होता है मेरा। ठीक है, जस्ट उसको कंसीडर करिए। ठीक है, स्टिल स्कैन, देन इसे सिंग स्कैन भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। अब ये होता क्या है बेसिकली, देखो आप लोगों को टीसीपी थ्री वे हैंडशेक पता है? गाइस पता है आप लोगों को टीसीपी थ्री वे हैंडशेक? यस सर। ओके, देखो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक में क्या होता है कि आपका एक टारगेट होता है, राइट? ये आपका विक्टिम एंड ये आप, राइट? आप क्या करते हो, सबसे पहले उसे हेलो करते हो, यानी कि सिंग, राइट? आप सिंग करने की कोशिश करते हो उससे। देन वो बंदा क्या करता है आपसे, आपको हेलो बैक करता है ना, कि यानी कि सिंग एक्नॉलेजमेंट आपको करता है ना? सिंग प्लस ए सी के, राइट? एंड देन उसके बाद आप भी उसे एक एक्नॉलेज करते हो, राइट? ये एकदम बेसिक है। अब देखो एनमैप, आपको आप जब भी एनमैप इस्तेमाल करोगे आपको ये समझना होगा कि बाय डिफॉल्ट एनमैप एवरी कम्युनिकेशन और एवरी सिस्टम, जब भी एनमैप कोई भी पैकेट किसी भी सिस्टम को भेजता है, किसी भी सिस्टम के साथ तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर टीसीपी ही होता है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट टीसीपी कम्युनिकेशन ही परफॉर्म करता है एवरी टाइम। ठीक है, बट इस जगह हम लोग ने क्या किया, एसएस। एसएस यानी कि स्टिल स्कैन, या फिर बोल सकते हैं हाफ टीसीपी स्कैन, या फिर सिंग स्कैन। देखो इसमें क्या होता है, आपने सिंग पैकेट तो भेजा, একে আমরা আইডল আইপি স্ক্যান বলি, কি একেই আমরা আইডল আইপি স্ক্যান বলি। আইডিয়া বুঝতে পারছেন না কথাটা বলো। মানে স্যার এই যে সিম স্ক্যান বড় হাফ টিসি মানে হাফ টিসিপি স্ক্যান যেটা, হ্যাঁ, এটাকেই স্যার আমরা আইডল আইপি স্ক্যান বলি। তো হুম, ফায়ারওয়ালটাকে বাইপাস করার জন্য বাইপাস করাটা বলা একটু ভুল হবে। বাইপাস না, অ্যাকচুয়ালি বলতে পারো যে ফায়ারওয়ালটা তুমি ঠিক
बोलते पारो बाईपास, बट इट्स नॉट ए ट्रूली बाईपास। ये यहाँ पे ट्रूली बाईपास नहीं हो रहा है फायरवॉल एक्चुअली। हम लोग उस फायरवॉल को चकमा देके बस उसके अंदर पैकेट्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं ताकि हमको ये पता चले कि उसमें कितने सारे पोर्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, ट्रूली बाईपास এটা স্যার পোর্ট ওপেন আছে কি ক্লোজ আছে কি দেখার জন্য এটা। है। देखो ये बस क्या होता है, देखो टीसीपी हब स्कैन से क्या होता है बेसिकली कि आप सिंक तो भेजते हो, एंड सिंक भेजने के बाद सर्वर या फिर जो भी आपका जो भी ओपोनेंट है वो आपको सिंक एसी के रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट वगैरह कुछ नहीं भेजते, आप डायरेक्टली रीसेट भेज देते हो या फिर कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हो। इस जगह पे आप क्या करोगे उस टाइम कि रीसेट पैकेज भेज दो और टर्मिनेट कर देते हो पूरे कनेक्शन को। यानी कि लाइक समथिंग आप बोल सकते हो कि वो लाइक भीड़ में, लाइक जब भीड़ होता है कहीं पे, आप भीड़ में किसी को सर पे मार दिया भाग गया वैसे, तो वो बस ढूंढ रहा है कि मारा किसने, बट आपको पता चल गया कि हाँ उसको पता, वो देख रहा है किस कौन कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो ढूंढ रहा है कि किसने उसको मारा, बट आप बीच में से भाग गए। तो समथिंग इज लाइक दैट। ओके স্যার এনম্যাপ যখন স্ক্যান করে তখন কি স্যার লগ জেনারেট হয়? হয়। তাহলে তো স্যার মানে কোনো একটা যে ভিকটিম মেশিন সে তো বুঝে যাবে স্যার যে কেউ আমাকে স্ক্যান করেছে বা যখন সে লগ দেখবে। हाँ देखो इससे ये सारे जो स्कैनिंग टेक्निक है ना, ये बस हम लोग को फायरवॉल को थोड़ा सा लाइक ट्रिक करना होता है। हम लोग फायरवॉल को उल्लू बनाते हैं, ठीक है, बट इन द सिस्टम उसको तो एक सर्वर पे, एक सिस्टम पे लॉग तो हमेशा होगा ही, लॉग हमेशा सेव होता है, लॉग हमेशा क्रिएट होता रहता है सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बट हम लोग सर्वर को क्या करते हैं, एट दैट टाइम ओनली हम लोग उसे लाइक थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, सर्वर को थोड़ा सा उल्लू बना देते हैं हम लोग, बस हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। बट इसके साथ ही साथ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास चला जाता है, लेकिन सिस्टम के अंदर लॉग फाइल में सेव हो ही जाता है। মানে এটাকে স্যার লকটাকে ক্লিয়ার করার কি কোনো রাস্তা নেই? মানে স্ক্যানও করছে কিন্তু লকটা জেনারেট হবে না ওখানে। ना এটা पॉसिबल है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी को कुछ स्कैनिंग परफॉर्म करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, तो उसका एक फुटप्रिंट या फिर उसका एक लॉग हमेशा जनरेट होगा। आप उसे तभी क्लियर कर सकते हो जब उस सिस्टम के अंदर आप घुस पाओगे। ওকে স্যার। বুঝতে পারছো? তুমি সিস্টেমের বাইরে থেকে কখনোই ওটাকে লক ক্লিয়ার করতে পারবে না, এটা পসিবল না, ইম্পসিবল এটা। তুমি হয় সিস্টেমের ভিতরে ঢুকতে হবে, ওই সিস্টেমটা ক্যাপচার করতে হবে, দেন অনলি ইউ ক্যান এবল টু ক্লিয়ার দ্য লক, আদারওয়াইজ বাইরে থেকে এটা কখনোই পসিবল নয়। तो देखो यहाँ पे वन अंडरगोइंग सिंक स्कैन, ठीक है। देखो अल्टीमेटली इससे भी पता चल ही जाएगा सर्वर को, आई मीन सिस्टम पे आपका लॉग आ ही जाएगा, बट ओनली एट दैट टाइम ओनली सर्वर थोड़ा सा ट्रिक होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, एंड तभी हम लोग इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हैं। यही मेन चीज है। स्ट्रेंज है अभी तक 52, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है स्कैन होने में। ओके ठीक है, आप इस तरह से सिंक स्कैन कर सकते हो, ठीक है। अब एसएस होता है टीसीपी सिंक स्कैन, या फिर बोलते टीसीपी हाफ टीसीपी स्कैन, ठीक है। इसी का ही और एक आता है जिसका नाम है आपका टीसीपी फुल स्कैन, या फिर बोल सकते हो फुल टीसीपी स्कैन, या फिर बोल सकते हो टीसीपी स्कैन। वो कैसे करते हैं हम लोग, उसके लिए आप लोग को इस्तेमाल करना होगा -ST। ST में क्या होता है, हम लोग प्रॉपरली पूरे टीसीपी कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, देन ओनली हम लोग स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं। ये होता है ST यानी कि टीसीपी स्कैन, ठीक है। ये बोल सकते हो कि टीसीपी स्कैन काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये पूरे सिस्टम पे सबसे फास्टेस्ट स्कैन होता है टीसीपी स्कैन, एंड सबसे स्लोएस्ट और स्कैन है जिसका नाम है आपका सिस्टम नेट। क्या मैं गलत सिस्टम पे आ गया क्या? 10.5 ओके चलो ठीक है। ओके तो इसी के साथ, ठीक है, TCP/ST आप बोल सकते हो कि एनमैप का वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट स्कैन, ठीक है। इसी के साथ और एक स्कैन आता है जो आप बोल सकते हो कि एनमैप का वन ऑफ द मोस्ट स्लोएस्ट स्कैन। वो क्या है, वो यूडीपी स्कैन। टीसीपी जैसा होता है आपका यूडीपी स्कैन भी होता है। उसके लिए आप लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, स्मॉल एस कैपिटल यू, ये होता है आपका यूडीपी स्कैन। अब देखो यूडीपी स्कैन मैंने क्यों कहा कि ये सबसे स्लो है, वन ऑफ द मोस्ट स्लोएस्ट स्कैन है ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमेशा किसी भी एनमैप, किसी भी टूल से भी, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का बाय डिफॉल्ट नहीं चलता कि वो टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। ओके
नॉट सो 999 तो ओके, चलो स्कैन हो चुका है। कुछ तो अजीब हो रहा है सिस्टम के साथ, जस्ट एक मिनट। अभी तो सारे पोर्ट्स ओपन थे। 5 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सिस्टम के साथ, जस्ट एक मिनट गाइस। एक बार স্যার হাইপেন T5 দিয়ে দেখুন। কি বলেন? কি বলেন? একবার হাইপেন T5 মানে তাড়াতাড়ি স্ক্যান করে একবার দেখুন ওটা হচ্ছে কি। হাইপেন T5 ওটাই এটা ভালো হয়েছে বিষয়টা। नॉर्मल स्कैन पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मशीन पे। ओके, नहीं चलो स्कैन तो सही से हो रहा है। तो ये था आपका एसएम, ठीक है, एसएम की यूडीपी स्कैन। नॉर्मली क्या होता है कि यूडीपी स्कैन में क्या होता है कि आपका जितने सारे पोर्ट्स हैं, मैक्सिमम ऑफ द पोर्ट्स का नेचर बाय डिफॉल्ट आपका यूडीपी होता है, सॉरी टीसीपी होता है, ठीक है। अब यूडीपी में क्या होता है कि सेम स्कैन हम लोग कर रहे हैं बट एज ए यूडीपी पैकेट हम लोग थ्रो कर रहे हैं nmap के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि जो इंसान नॉर्मली चावल खाता है उसको अगर आप बर्गर के लिए पूछोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, देन जाके वो खाएगा या नहीं खाएगा तो उसके ऊपर है। सेम एज लाइक कि अब जो पोर्ट टीसीपी पैकेट एक्सेप्ट करता है डिफॉल्ट, उसमें nmap जाके क्या करेगा कि उसको पूछ रहा है कि क्या तुम यूडीपी पैकेट को एक्सेप्ट करोगे। अगर वो पोर्ट्स एक्सेप्ट करता है देन ओके, ये टर्न ऑन है, इसको काउंट कर लेते हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता देन फिर से दूसरा पोर्ट में जाएगा। तो इस तरह से आपका यूडीपी पैकेट सेंड होता है एंड ऑल ओवर द पोर्ट्स। ओके, तो इसलिए ये यूडीपी पैकेट थोड़ा सा स्लो ये काम करता है, ठीक है। Why is this not working? Why? Okay, ये हो गया आपका TCP एंड UDP स्कैन। सेम आपके जितने भी लाइक जो भी आपने ये ये जो थ्री वे हैंडशेक है इसमें आप जो परफॉर्म किया लाइक AC के स्कैन आप ये भी कर सकते हो। कैसे? कैपिटल A से। ये होता है आपका AC के स्कैन, यानी एक्नॉलेजमेंट स्कैन, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो nmap के द्वारा, ठीक है। देखो टीसीपी स्कैन नहीं, आपका स्टिल स्कैन, हाफ टीसीपी स्कैन, एक्नॉलेजमेंट स्कैन, ठीक है। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग फायरवॉल को थोड़ा सा ट्रिक कर पाए। फायरवॉल के अंदर जाकर देखो डायरेक्टली क्या होता है, कभी कभार फायरवॉल आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप डायरेक्टली nmap के थ्रू किसी को आईपी दोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर देगा आईपी को। एंड उसी चीज को बाईपास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि फायरवॉल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। देखो नॉर्मली फायरवॉल को पता होता है कि हम लोग एज ए यूजर जो भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा वो सिंक पैकेट ही भेजेगा, राइट। अगर सिंक पैकेट भेजने के टाइम अगर वो डायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट पैकेट फॉर सर्वर को भेजेगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। उसे क्या करना चाहिए, एक्नॉलेज पैकेट को डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसी चीज का फायदा उठा के हम लोग फायरवॉल के अंदर का जो भी पोर्ट्स यानी कि जो भी पोर्ट्स उस सिस्टम में अवेलेबल है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो होस्ट ऑल इज अप एंड नॉट शोइंग, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो फायरवॉल को जब भी आप आइडेंटिफिकेशन करने जाओगे, जब भी आप आइडेंटिफाई करने जाओगे तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है कि आपको पोर्ट दिखे या फिर ना दिखे, ठीक है, ये हो सकता है कभी कभार आपको सारे पोर्ट्स लिस्ट आ जाए, कभी कभार नहीं भी आए, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट अगर आप डायरेक्टली उसे दोगे एक्नॉलेजमेंट पैकेट तो किस तरह से रिएक्ट करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। देन दूसरा कमांड आता है जिसका नाम है आपका PN। ये बहुत ज्यादा कारीगर है। जब भी आप फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी पाइप को स्कैन करो एंड वो आपको डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं समथिंग इस टाइप, डायरेक्टली आपको रिजल्ट आ रहा है एंड यहाँ पे बताया जाता है कि -PN अप्लाई करके देखो कि काम करता है या नहीं। ओके, तो इसका मतलब होता है कि नो पिंग स्कैन। ये इसका मतलब होता है कि हम लोग डायरेक्टली पहले ICMP पैकेट को नहीं भेजेंगे। क्यों यहाँ पे ICMP पैकेट कैसा है, देखो
Nmap जब भी स्कैन परफॉर्म करता है किसी भी आईपी को, किसी भी सिस्टम को, वो सबसे पहले एक बार आईसीएमपी पैकेट को भेज के देखता है कि वो सिस्टम ऑन है या नहीं, क्योंकि अगर वो सिस्टम ऑन नहीं हुआ तो उसका स्कैनिंग लाइक वेस्ट हो जाएगा ना। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली Nmap क्या करता है कि वो आईसीएमपी पैकेट को भेजता है, देन जब सिस्टम लाइक रिप्लाई बैक करता है कि हाँ मैं ऑन हूँ, देन जाके वो स्कैनिंग परफॉर्म करता है। सो इससे पता क्या, इससे कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारा सिस्टम है जो उसको पता, आई मीन बहुत सारे सिस्टम सर्वर होते हैं जो क्या करता है आईसीएमपी पैकेट को ब्लॉक करके रखता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि अगर मैं आईसीएमपी पैकेट भेजूंगा तो आपको रिप्लाई बैक नहीं करके, पिंग नहीं करेगा। अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आप कभी कभार एक्टिव डायरेक्टरी अगर देखोगे, फिर बहुत सारे ऐसा वेबसाइट भी होता है जो लोग जो अगर आप Nmap से पिंग करने की कोशिश करोगे या फिर नॉर्मल पिंग से भी पिंग करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको सिस्टम आपको रिप्लाई बैक नहीं देता है। एडी में बहुत ज़्यादा ये होता है कि पिंग आईसीएमपी पैकेट को ब्लॉक किया जाता है बाय डिफॉल्ट। तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, डैश पेन इस्तेमाल करते हैं। डैश पेन से नो पिंग स्कैन, यानी कि मैं आईसीएमपी पैकेट को भेजूंगा ही, मैं डायरेक्टली स्कैन चालू कर दूंगा। ओके, तो ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभार फायरवॉल को चकमा देने के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, ओके चलो रिजल्ट आ चुका है एंड देन ओके, सो फाइनली हमारे एसबी स्कैन हो चुका है। ठीक है, तो अजीब ही रिजल्ट क्यों आया एसबी में? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब ही रिजल्ट आया, क्यों आया ऐसा? ओके, तो अभी देखो मैंने एक चीज ऐड किया जिसका नाम है T5। अब ये T5 है क्या? T5 यानी कि थ्रेड 5। देखो आज के दिन में अगर मैं आज की बात करूँ, लाइक लेटेस्ट जनरेशन की बात करूँ, तो आजकल हमारे प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा थ्रेड्स है, बहुत ज़्यादा कोर आ चुके हैं, लाइक जैसे 8 कोर 12 थ्रेड्स है, 10 कोर 12 थ्रेड, 10 कोर 24 थ्रेड्स, बहुत सारे लाइक लेटेस्ट प्रोसेसर आ चुके हैं, राइट। बट अगर मैं बात करूँ 90s के ज़माने में जब पेंटियम इन्वेंट हुआ था, उस टाइम प्रोसेसर भी इतने ज़्यादा कोर्स नहीं थे। उस टाइम मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो लाइक ऐसे बहुत पावरफुल प्रोसेसर भी जो लाइक फ्लैगशिप प्रोसेसर होते हैं, तो उनमें क्वाड कोर होता था, लाइक 4 कोर 4 थ्रेड या फिर 2 कोर 4 थ्रेड या फिर 2 कोर 2 थ्रेड ऐसा होता था। अब थ्रेड यानी कि ये प्रोसेसर के कोर को डिवाइडेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्रेड्स। तो 90s में क्वाड कोर या फिर 4 थ्रेड्स यही मैक्सिमम होते थे सीपीयू में। एंड Nmap में एक फीचर उस टाइम ऐड किया गया था कि हम लोग प्रोसेसर की पावर या फिर थ्रेड को इस्तेमाल करके डायरेक्टली सिस्टम को स्कैन कर सकते थे, ताकि ये जो स्कैनिंग है थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो इसलिए टी यानी कि थ्रेड इन्वेंट हुआ था। अब देखो टी का लिमिटेशन कब है? टी का लिमिटेशन आपका 4 तक है, क्योंकि ये 90s में इन्वेंट होता है, उसके बाद से इसमें ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट किया नहीं गया इस ऑप्शन पे, तो ये T4 मैक्स T4 ही होता है। ओके, एंड अगर मैं आज के दिन की बात करूँ कि ये काम कारीगर है क्या, ये काम करता है? नहीं, उतना ज़्यादा ये काम नहीं करते, कोई मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट ये डाल नहीं पाता है। तो अगर मैं देखो T4 डालूँ तो मेरा देखो सीपीयू में बस थोड़ा सा स्पाइक यहाँ पे है, उसके बाद फिर से वो नॉर्मली चल रहा है, तो ज़्यादा ये इम्पैक्ट डाल नहीं पाता सिस्टम पे आजकल, बिकॉज हमारे सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि सिस्टम पे ये कुछ है या नहीं। तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट देता नहीं। ठीक है, T4 के अलावा भी और एक आता है पर जिसका नाम है डैश F। ठीक है, डैश कैपिटल F फॉर फास्ट स्कैन, यानी कि ये आपको फास्ट स्कैन करके दे देगा। ठीक है, डैश F। ओके, अब बात करते हैं कि देखो अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना है। ठीक है, मुझे देखना है कि ये पोर्ट अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए डैश P, आपको डैश P इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, डैश P देने के बाद आपको पोर्ट नंबर मेंशन करना होगा, कौन सा स्पेसिफिक पोर्ट आप स्कैन करके देखना चाहते हो कि वो अवेलेबल है या नहीं, या फिर ऑन है या नहीं। तो ले सपोज कि मैं डालता हूँ पोर्ट 80, तो ऑब्वियसली ये मुझे बता देगा कि हाँ पोर्ट 80 ओपन है। बट अगर मैं डालता हूँ पोर्ट 21, तो ऑब्वियसली पोर्ट 21 अवेलेबल नहीं है, बट
मेरे विंडोज सिस्टम का फायरवॉल की वजह से यहाँ पे देखो फिल्टर दिखा रहा है, बट ये पोर्ट सिस्टम पे ओरिजिनली अवेलेबल नहीं है, बट फॉर द फायरवॉल ये इसे फिल्टर दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ पोर्ट 22, ये भी आपको फिल्टर्ड ही दिखाएगा, बट इसमें विंडोज में SSH का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आप डेली कोई स्पेस देना नहीं चाहता तब भी ये सेम ही काम करेगा। अगर आप बीच में स्पेस देते हो तब भी काम करेगा, स्पेस नहीं दोगे तब भी काम करेगा। ओके, अब देखो, अब ऐसा एक एक पोर्ट को फाइंड कर सकते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पोर्ट को फाइंड नहीं करना, मुझे पोर्ट रेंज ऑफ पोर्ट को फाइंड करने की एक रेंज मुझे फाइंड करने की, इतना से इतना तक का मैं देखना चाहता हूँ कि पोर्ट्स अवेलेबल है या नहीं। ओके, सो फॉर दैट इज व्हाट यू कैन डू, like let's say कि you just want to find out like from port 80 to 200, you want to see that how much ports are available in this range. Okay, so for that just simply hit enter and then it will reflect to you that कि port 80, port 135 and 139 ये तीनों ही ये तीन पोर्ट्स अवेलेबल है विद इन दिस रेंज। एंड इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक रेंज आप सेट कर सकते हो। ओके, then there's another option is called top ports. Let's see, top ports 20। मान लो कि मुझे टॉप 20 पोर्ट्स देखना है कि इस सिस्टम पे टॉप 20 पोर्ट्स क्या क्या है ना। तो उसके लिए आपको टॉप पोर्ट्स ये ऑप्शन आपको देना होगा, डैश डैश टॉप पोर्ट्स एंड देन स्पेस एंड देन मेंशन द नंबर, यानी कि हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू सी। ठीक है, आप कितने नंबर सब देखना चाहते हो, टॉप पोर्ट्स के कितने नंबर आप देखना चाहते हो, 5 टॉप पोर्ट्स देखना चाहते हो, टॉप 10 पोर्ट देखना चाहते हो, टॉप 20 पोर्ट देखना चाहते हो, तो आपको ये नंबर मेंशन करना होगा एंड देन हिट एंटर एंड देन देखो आपको यहाँ पे 20 पोर्ट्स ही दिखाएंगे। एंड देखो FTP 21 पे FTP है, 22 पे SSH है, बट अब कुछ ध्यान में रखना है कि ये सारे सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, दैट्स फिल्टर। तो जो मैं सबसे पहले आपको बताया था कि कौन सा पोर्ट में क्या रन होता है, Nmap बाय डिफॉल्ट ओनली बस वही दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा बस Nmap को अगर एक बार स्कैन कर लिया, नॉर्मल एक IP डाल के Nmap को स्कैन कर लिया अपने समझ लिया कि अच्छा ये पोर्ट में ये रन हो रहा है, तो नहीं, ये गलत है। आपको ऐसा आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा इंटेंस स्कैन करना होगा। अगर आप इससे बस श्योर होगी कि अच्छा पोर्ट नंबर 22 पे तो FTP है, तो नहीं, ये गलत भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप टॉप पोर्ट्स फाइंड कर सकते हो, बट हाँ मैक्सिमम द टाइम कुछ कुछ आपको गलत दे सकते हैं, कुछ कुछ आपको सही भी दे सकता है। अब देखो ये क्या कर रही है, बस सीरियली आपको काउंट करके टॉप 5 पोर्ट्स दिखा रहा है ना। सो दैट्स व्हाई ये उतना ज़्यादा कारीगर ऑप्शन नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि Nmap बाय डिफॉल्ट ओनली 1000 पोर्ट्स को ही स्कैन करता है, बट हम लोग को पता है कि कितने सारे पोर्ट्स होते हैं हमारे सिस्टम पे, 65,535 है ना। तो अगर मुझे 65,535 पोर्ट्स को ही स्कैन करना है मैनुअली, सॉरी नॉट मैनुअली एक्चुअली थ्रू द Nmap, अगर मुझे क्या स्कैन करना है तो मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा, मुझे -p- इस्तेमाल करना होगा। ओके, मुझे -p एंड इस पे आपका -p स्मॉल होगा। ठीक है, नॉट द कैपिटल, आपको -p स्मॉल ही रखना है एंड उसके बाद फिर से डैश, कोई भी स्पेस नहीं होगा दोनों पे। ओके, तो लास्ट में हम लोग ने SV रख किया था। ओके, चलो फाइनली SV हमारा स्कैन हो चुका है। हम देखो कि इस वक्त हमारे पोर्ट स्टेट एंड सर्विस के साथ और एक चीज ऐड हुआ जिसका नाम है वर्जन। एंड यू कैन सी लाइक पोर्ट 80 में HTTP रन हो रहा है, उसका वर्जन क्या है, बैट टू HTTPD 2.7। 135 पे MSRPC माइक्रोसॉफ्ट विंडोज RPC, देन 139 पे नेट बायोस विंडोज नेट बायोस। ठीक है, 445 में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट का DS विंडोज 7 से लेकर 10 माइक्रोसॉफ्ट DS। देखो इसमें क्या करें, एग्जैक्ट वर्जन तो ये पता नहीं कर पाया, बट ये 7 से लेकर 10 तक का एक ये रेंज बताया कि हाँ इसमें से कोई भी एक वर्जन हो सकता है। एंड वर्कबुक का नाम वर्कबुक है, एंड जो भी पॉसिबल वर्जन हो पाया उनसे Nmap से वो आपको कैप्चर करके बता दिया। एंड फिर कैसे सर्विस इन्फो होस्ट, यानी कि सिस्टम का नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखोगे कि यहाँ पे आप बता रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इट नॉट श्योर कि विंडोज का कौन सा वर्जन है। तो अगर हमें विंडोज के वर्जन को पता करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं,
हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल ओ, ओके, ओ फॉर ओएस डिटेक्शन, ओके। सो इफ आई जस्ट सिंपली हिट एंटर, देन ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी डिटेल्स होगा वो आपको बता देगा, ओके। तो यहाँ पे स्कैन हो चुका है एंड देन यहाँ पे देखो कि रनिंग विंडोज 7 फोन, विंडोज 7 सीपी, ठीक है। देखो डैश ओ जो कैपिटल डैश ये जो ऑप्शन है ये उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होता इनिशियली स्टेज में, यानी कि आप इससे ये फाइंड कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, बट एग्जैक्ट वर्जन ये कभी नहीं फाइंड कर सकता, इज नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी एग्जैक्ट वर्जन ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। If you want that which type of operating system is that, then you can easily find out. But exact version find up dash o से initially stage पे नहीं कर सकते, थोड़ा सा वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ओके। सो अगर आपको एग्जैक्टली वर्जन आपको पता करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैन आपको परफॉर्म करना होगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डैश ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके, एज लाइक डैश के साथ कुछ ऑप्शंस है जैसे कि आपका ओएस गैप, ठीक है। यस यस। अब ये क्या करता है, ये ओएस स्कैन गेस करने की कोशिश करेगा थोड़ा सा और एग्रेसिवली, ठीक है। देखो डैश ए का भी अलग सा आर्गुमेंट होता है, इस आर्गुमेंट कहता है किसी भी ऑप्शन का खुद का एक अलग से आर्गुमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा और इंटेंसली स्कैन करने की कोशिश करेगा, फाइंड करने की कोशिश करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्ट वर्जन क्या है उसका। स्टिल यहाँ पे देखो विंडोज 7 फोन, विंडोज एम्बेडेड स्टैंडर्ड 7, ठीक है, विंडोज 7.5 और 8, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये विंडोज 7 में ही वो थोड़ा सा ज़्यादा घूम रहा है एंड थोड़ा सा विंडोज 7.5 पे 8 ये थोड़ा सा आपको दिखा रहा है ना। सो अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंस जाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप करोगे मैक्स ओएस देन डैश ट्राइस, ठीक है। अब इसमें आप एक लिमिट से दो, लेट्स से कि मैं 1 देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंस स्कैन करने की कोशिश करेगा, बट स्टिल आपको देखो ये विंडोज 7 पे ही ये दिखा रहा है, विंडोज 7 एंड 8.0 इस पे ही ये दिखा रहा है, ठीक है। सो दैट्स ओएस डिटेक्शन उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है आज के दिन पे, ठीक है। बस स्टिल आप ये फाइंड कर सकते हो कि कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो लिनक्स है, क्या वो विंडोज है, क्या वो एंड्रॉयड है, ठीक है, क्या वो मैक है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो। बट एग्जैक्ट वर्जन आप डैश ओ से डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, थोड़ा सा इशू होता है, यानी कि थोड़ा सा आज के दिन में उतना अच्छे से काम नहीं करता है, ओके। तो फाइनली मेरा डैश पे डैश ये स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड हियर यू कैन सी पोर्ट नंबर 80 टू मैक्स 10,248 नंबर पोर्ट ये ओपन है एंड ज़्यादा और बाकी कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है। अब देखो देन व्हाई वी नीड दिस डैश पी डैश, ठीक है। अब ये डैश पी डैश क्यों जरूरत होता है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझना होगा कि बाय डिफॉल्ट एनमैप हमेशा 1000 पोर्ट्स ही स्कैन करता है। देखो यहाँ पे नॉर्थ स्विंग सिटी 5527, ठीक है, क्योंकि उसने सारे पोर्ट्स को स्कैन किया एंड फर्स्ट पहले क्या करते थे इनमें, जब ये फर्स्ट टाइम हम लोग स्कैन करते थे इनमें पे, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको दिखाओ देखो 94 फिल्टर्ड पोर्ट्स, ठीक है, नॉट शोइंग। तो इनमें बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं कि आपका फर्स्ट 1000 पोर्ट्स ही ये बाय डिफॉल्ट कोशिश करता है स्कैन करने पे। तो ये एज ए हैकर हमें भी पता है, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें भी पता है। तो वो क्या करते हैं, मान लो किसी SSH पोर्ट है, पोर्ट नंबर 80 या फिर पोर्ट नंबर SSH जो 22 पे रन था, उसने क्या किया, उस SSH पोर्ट नंबर को 20,000 पे और सेव कर दिया। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट किसी सिस्टम को बाय डिफॉल्ट स्कैन करोगे, SB से स्कैन किया फिर नॉर्मल स्कैन किया, तो आपको फर्स्ट 1000 पोर्ट के अंदर ही जो आपको दिखाएगा, आई मीन जो लिस्ट होगा वही आपको दिखाएगा, राइट। 20,000 पे क्या रन हो रहा है वो आपको नहीं दिखाएगा, बट एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि उसने 20,000 पे कोई एक पोर्ट सेट करके रखा है। सो उसी को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बार डैश पे डैश रन करवाना होगा, ताकि 20,000 में 50,000 नंबर पे अगर कोई पोर्ट सेट है तो वो भी हम लोग फाइंड कर पाए।
ठीक है। ओके, अभी आता है आपका एक दूसरा स्कैन जिसका नाम है आपका एनमैप एससी। ये क्या होता है? एससी का मतलब होता है स्क्रिप्ट स्कैन। ये किस तरह के स्क्रिप्ट को स्कैन करवाता है? ये डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स को स्कैन करवाता है। अब स्क्रिप्ट्स होता क्या है देखो, एनमैप में जब भी आप कोई भी स्कैन करते हो ना, तो उसका एक लिमिटेशन होता है, उसका एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एक एरिया होता है, एक बैरियर होता है, एक लिमिटेशन होता है कि वो इतना तक ही वो स्कैन कर सकता है। स्क्रिप्ट्स काइंड ऑफ बोल सकते हो, स्क्रिप्ट्स एक वन टाइप ऑफ फाइल है। ऐसे बहुत सारे फाइल्स आपके एनमैप के लेवल पे होता है आपके काली मशीन पे। ये जो स्क्रिप्ट्स या फिर जो स्क्रिप्ट स्कैनिंग है, ये वन टाइप ऑफ बोल सकते हो कि काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये वन टाइप ऑफ सुपर पावर है एनमैप के लिए। फिर बोल सकते हो कि थोड़ा सा लाइक आई मीन बोल सकते हो कि एक छोटा मतलब इस स्क्रिप्ट को आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो, कोई भी स्कैन में आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल रहा है। ओके, तो मैंने बोल सकता हूँ इसका स्पेशल हथियार है इनमें का, तो जो ये छुपा कर रखता है बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल स्कैन ही परफॉर्म करोगे जब आपको लग रहा है कि नहीं इससे आपका काम नहीं बन रहा, आपको स्क्रिप्ट स्कैन ही रन स्क्रिप्ट्स को ही रन करवाना होगा, तभी जाकर आपको स्क्रिप्ट रन करना है। तो स्क्रिप्ट काइंड ऑफ बोल सकते हो कि थोड़ा सा स्पेशल एक वन टाइप ऑफ हथियार है इनमेप के लिए। एंड ये इनमेप नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करता, आपको मैनुअली स्क्रिप्ट को रन करवाना होता है इनमेप के अंदर। अब ये स्क्रिप्ट्स होता क्या है? तो अगर मैं आपको दिखाऊं टर्मिनल ओपन करके, तो ये स्क्रिप्ट बेसिकली सीरीज यूजर, ठीक है, देन आपको जाना शेयर एंड देन स्क्रिप्ट। ये जो लोकेशन है यूजर शेयर एंड स्क्रिप्ट, मैं इस लोकेशन को डाल देता हूं आपको ग्रुप में, ठीक है। इस लोकेशन पे पर्टिकुलरली क्या होता है, आपके एनमैप के स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होते हैं। ये स्क्रिप्ट्स एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली एक सेटअप कोड है, सेटअप काइंड ऑफ कोड या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन होता है एक फाइल के अंदर, एंड ऐसे बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल होते हैं फॉर द एनमैप, ठीक है। अगर मैं अभी एलएस करता हूँ, देखो और मैं एलएस करता हूँ, देखो कितने सारे फाइल्स है, ठीक है। ये सारे स्क्रिप्ट्स फाइल है, सबका देखो लास्ट में डॉट एनएसी। अभी एनएसी होता क्या है, ठीक है, देखो सारे फाइल्स के अंदर देखो डॉट एनएसी। ये एनएसी होता है, एनएसी का मतलब होता है एनमैप स्क्रिप्टिंग। एंड अगर आपको स्क्रिप्ट्स रन करवाना होता है तो आपको सूडो पे ही रहना होगा। अगर आप नॉर्मल यूजर से स्कैन करवा रहे हो तो स्क्रिप्ट्स आप रन नहीं करवा पाओगे, आपको सूडो में जाना ही होगा, ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस स्कैन पे चला जाता है, ठीक है, स्क्रिप्ट स्कैन। तो ऐसे बहुत सारे फाइल्स हैं स्क्रिप्ट में, ये सारे बेसिकली लुआ स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। लुआ स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, लुआ लैंग्वेज में लिखा गया है ये सारे स्क्रिप्ट फाइल को। एंड ये सारी जितनी भी स्क्रिप्ट है ये फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट फाइल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि लाइक किसी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए स्क्रिप्ट होते हैं, या फिर यहाँ से आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे अटैकिंग के लिए भी स्क्रिप्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए स्क्रिप्ट होते हैं, देखो बिटकॉइन इन्फो के लिए भी स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है, बिटकॉइन गेट एड्रेस के लिए भी स्क्रिप्ट होते हैं, देन स्पूफिंग के लिए स्क्रिप्ट, तो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट होता है। एंड हर एक स्क्रिप्ट का अपना एक अलग सा आर्गुमेंट होता है, अलग सा ऑप्शंस होता है हर एक स्क्रिप्ट के लिए। तो आपको स्क्रिप्ट तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप फुल्ली अवेयर हो उस स्क्रिप्ट के बारे में कि वो स्क्रिप्ट करता क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट को इस्तेमाल नहीं करोगे तो दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक कि उसका स्कैन परफॉर्म नहीं होगा, अगर आपका स्कैन परफॉर्म हो गया तो आपके जो सामने जो आपका जो विक्टिम मशीन है उनको आप डायरेक्टली हार्म पहुंचा सकते हो। सो दैट्स व्हाई if you want to use the script, then you first you need to know that how the script is being used, okay, what is the option of that script, and then only you can go and then try to use that script. Otherwise don't use this type of script, because यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट देखो, एक होता है फायरवॉल बाईपास का स्क्रिप्ट, फायरवॉल, ठीक है, ये दोनों फायरवॉल बाईपास के लिए हम लोग स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। एफटीपी ब्रूट फोर्स के लिए स्क्रिप्ट होता है यहाँ पे, एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए भी यहाँ पे स्क्रिप्ट्स होते हैं, माइस्क्यूएल एन्यूमरेशन, ठीक है, बेसिकली ये जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है ये बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए हम लोग स्क्रिप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल ब्रूट फोर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं स्क्रिप्ट्स होता है, यहाँ पे पासवर्ड ब्रूट फोर्स के लिए स्क्रिप्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है। सो दैट्स व्हाई किसी भी स्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट के बारे में अवेयर होना होगा, अदरवाइज आप किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हो।
ओके, तो ये एससी होता क्या है? डैश एससी का मतलब स्क्रिप्ट स्कैन, या फिर ये डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन ये करवाता है। ये डिफॉल्ट स्क्रिप्ट में आता कौन कौन सा स्क्रिप्ट है? देखो, ये भी बेसिकली क्या करता है, उस फोल्डर से उस लोकेशन से वो स्क्रिप्ट को चूज करता है। बट यहाँ पे होता क्या है कि मैं पर्टिकुलरली ये बहुत मिनिमल या फिर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा बहुत स्लाइड या बहुत ही लाइट स्क्रिप्ट को ये चूज करके देन ये रन करवाता है, ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल पाए बट सिस्टम को हार्म ना पहुंचे। इस तरह से स्कैन करता है ताकि सिस्टम को इफेक्ट ना पड़े, देन ऑल्सो बट स्टिल आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके, सो आप एससी को इनिशियल स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। कैसे? देखो, मैंने इसको एससी मेंशन किया एंड देन मैंने इसको रन करवा दिया, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आप मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शन को भी एक साथ रन करवा सकते हो। कैसे? जैसे देखो, अगर मैं इसको ओके 90% हो रही है, कंप्लीट हो गया। देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट के साथ और भी कुछ रन करवाना, सो फॉर दैट एस सी एंड देन लाइक मैं चाहता हूँ कि T4 में थ्रेड, देन मैं चाहता हूँ कि डैश एक रेंज, मैं चाहता हूँ कि पोर्ट रेंज 80 से लेके 200 के बीच में ये रन करे और कहीं पे नहीं। तो आप ऐसे मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस को भी एक साथ मेंशन कर सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस स्क्रिप्ट रन होगा। ओके ओके, सो आवर स्कैन इज कंप्लीटेड। ओके फाइन, देखो हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला? देखो, सबसे पहले आपको पोस्ट स्कैन दिखाया, ठीक है, जो कि बेसिक है। देन पोस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट, तो उसने क्या किया, क्लॉक स्क्रू का इन्फॉर्मेशन निकाला, कितने घंटे से सिस्टम चल रहा है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। देन आपका डेट, देन एसएमबी सिक्योरिटी मोड इसने फाइंड किया, अकाउंट यूज केस, ऑथेंटिकेशन लेवल इसका यूजर है, चैनल रिस्पांस सपोर्टेड है, मैसेज साइनिंग डिसेबल्ड है, ठीक है। एनबीडी स्टेट का नाम क्या है, यानी कि एनबीडी स्टेट में नेटवर्क का नाम क्या है, सिस्टम का नाम बेसिकली नेटवर्क का नेम, सिस्टम नेम ही होगा आपका। एंड देन नेटवर्क का मैक एड्रेस, सिस्टम का मैक एड्रेस सेम ही होगा। देन एसएमबी ओएस डिस्कवरी, पर्टिकुलरली मेरे सिस्टम पे एसएमबी रन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 139 यहाँ पे देख पा रहे हो कि नेट बाय एसएसएन रन है, 445 में भी नेट बाय माइक्रोसॉफ्ट का डीएस रन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों आपका एसएमबी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एसएमबी हम लोग बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बट एसएमबी ओएस डिस्कवरी, ठीक है, एसएमबी यानी कि सर्वर मैसेज ब्लॉक, एंड इसी एसएमबी ओएस डिस्कवरी में ही आपको देखो एक चीज मिला जो कि विंडोज 7 प्रोफेशनल 7601 सर्विस प्लस 1 यानी कि एग्जैक्ट वर्जन हमें मिला है थ्रू किससे, एसएमबी ओएस डिस्कवरी से, जो कि एससी के अंदर था, यानी कि जो स्क्रिप्ट हम लोग ने रन किया था डैश एससी, उसके थ्रू हमें एग्जैक्ट वर्जन विंडोज का मिल गया, जो पहले हमें नहीं मिला था, है ना। एंड बेसिक ओएस डिटेक्शन, एंड देन आपका कंप्यूटर का नाम, एंड देन नेटवर्क का कंप्यूटर का नाम सेम ही होगा, एंड देन वर्क ग्रुप, एंड देन सिस्टम टाइम, ठीक है, एंड देन एसएमबी सिक्योरिटी मोड 2.1, ओके, मैसेज सेंडिंग एनेबल बट नॉट रिक्वायर्ड। तो देखा आपने कि इससे आप कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, एंड ये सब क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसी को आपका स्कैनिंग एंड ये भी बोल सकते हो, ये भी एनिमेशन का एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग स्कैनिंग के थ्रू बहुत सारा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम लोग नेक्स्ट अटैक को अटैक परफॉर्म कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि हम लोग अटैक सेट करते हैं, फिर अटैक हम लोग प्लान करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आता है आपका एग्रेसिव स्कैन। एग्रेसिव स्कैन यानी कि डैश ए, ठीक है। अब ये एग्रेसिव स्कैन करता क्या है? देखो, ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं एग्रेसिव स्कैन आपका सेट ऑफ स्कैनिंग होता है। सेट ऑफ स्कैनिंग यानी कि ये एक साथ 3 स्कैन परफॉर्म करता है। क्या क्या एग्रेसिव स्कैन एक साथ फर्स्ट ये ओ स्कैन करेगा, ठीक है, जो डैश ओ से हम लोग स्कैन करते थे, कैपिटल ओ, ठीक है, ओ स्कैन। देन ट्रेस राउट ये स्कैन करता है, एंड देन आपका वर्जन स्कैन एंड और चीज़ ये रन करवाता है, सॉरी 3 नहीं 4, और चीज़ होता है आपका ये अभी जो हम लोग रन किया था स्क्रिप्ट स्कैन, सॉरी हाँ SCRI स्क्रिप्ट स्कैन, ठीक है, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन, ठीक है।
और कोई चीज़ भूलना नहीं है कि ये डिफॉल्ट एससी का मतलब डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन होता है, क्योंकि अगर मैं कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को मेंशन करता देन जाके ये नॉर्मल स्क्रिप्ट होता, बट बाय डिफॉल्ट ये खुद से ही जो पॉसिबल स्क्रिप्ट हो पाया उसे चूज करता है एससी, ठीक है। तो ओएस स्कैन, ट्रेस आउट, वर्जन स्कैन एंड डिफॉल्ट स्क्रिप्ट, ये स्कैन ये मतलब बोल सकते हो कि ये चारों का जो स्कैनिंग है ये कॉम्बिनेशन होता है एक स्कैन के अंदर, एग्रेसिव स्कैन। तो मैं काम करता हूँ एग्रेसिव स्कैन के साथ मैं देता हूँ डैश एफ, यानी कि फास्ट, यानी कि ये जो स्कैन है इसको थोड़ा फास्ट कर दो। एंड लेट्स सी कि ये कब तक खत्म होता है, क्योंकि एग्रेसिव स्कैन थोड़ा सा ये भी टाइम लेता है। ओके, हाँ हाँ बोलो, ये देखो। तो ये लिनक्स में और पैरेट ओएस में क्या डिफरेंस है मोस्टली, काली में और पैरेट में? देखो काली में पैरेट में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, दोनों का काइंड बोल सकते हो कि कमांड भी सेम है, क्योंकि दोनों में ही आपका एपीटी पैकेट मैनेजर इस्तेमाल होता है, एडवांस पैकेट मैनेजर दोनों में इस्तेमाल होता है, कोई अंतर नहीं है, दोनों टोटली सेम है। बस एक बेसिक डिफरेंस ये है कि पैरेट में बहुत ज़्यादा टूल्स है, लाइक अराउंड बोल सकते हो 1000 से भी ऊपर पैरेट में टूल्स है, 12,000 से भी ज़्यादा टूल्स है पैरेट में, एंड काली में का 450 से ज़्यादा टूल्स है, और कुछ नहीं। बाकी दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं, सेम फाइल लोकेशन, सेम फाइल सिस्टम, काली में भी सेम है, पैरेट में भी सेम है, बस इंटरफेस एंड टूल का कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सर कमांड्स तो सारी सेम यूज होगी ना, जैसे एनमैप में इसमें यूज कर रहा हूँ वैसे ही पैरेट में भी होगा? एग्जैक्टली, टोटली सेम, कोई अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं, टोटली सेम। तो ऐसा कोई मैंडेटरी है कि मेरे को काली पे ही प्रैक्टिस करना है और पैरेट पे नहीं कर सकता मैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। काली का साइज छोटा है, काली का लाइक अराउंड इसका जो साइज है काली का आईएसओ का भी फाइल अराउंड 2.5 जीबी है उसका, और वीएमआर का भी साइज अराउंड 2.5 फिर 3 जीबी का होता है, बट वहाँ पे पैरेट का साइज अराउंड 5 जीबी फिर 6 जीबी ऐसा कुछ होता है। यस यस। सो दैट इज द मेन थिंग, और कुछ नहीं, बाकी एवरीथिंग विल सेम। बाकी जिसको जैसे समझ में आए किसी में भी प्रैक्टिस करो, है दोनों में सेम चीज? एग्जैक्टली, टोटली सेम, कोई अंतर नहीं है। हाँ, काली का काइंड बोल सकते हो कि काली बहुत पुराना है, काली लाइक एज ए 2007, लाइक उस टाइम बैक ट्रैक उसका नाम था, 2013 के बाद वो काली लिनक्स उसका नाम हुआ, तो बस ये थोड़ा सा पुराना है, तो उसका इसका काली लिनक्स का फैन फॉलोइंग थोड़ा सा ज्यादा है, और तो कुछ। ये एपीटी का मतलब क्या होता है? एडवांस पैकेट मैनेजर, एडवांस पैकेट मैनेजर आप बोल सकते हो कि एक पैकेट मैनेजर है। पैकेट मैनेजर बेसिकली करता है क्या कि ये आपके काली में भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ओके ओके। अब हर एक पैकेट मैनेजर अलग अलग बोल सकते हो, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग पैकेट मैनेजर होता है। जैसे डेबियन बेस्ड जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है सब में आपका एपीटी यानी कि एडवांस पैकेट मैनेजर इस्तेमाल होता है। ओके। देन अगर आप कभी भी अगर आर्च लिनक्स इस्तेमाल करोगे तो आर्च लिनक्स में पैकमैन पैकेट मैनेजर इस्तेमाल होता है, पैकमैन। ठीक है, अगर आप लिनक्स में सॉरी नॉट लिनक्स एक्चुअली, अगर आप मैक यूजर हो, अगर आप मैकबुक इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी आप एक पैकेट मैनेजर सेट कर सकते हो, जैसे हमारे विंडोज में टर्मिनल होता है यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट होता है, सेम मैक में भी होता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसमें भी आप एक पैकेट मैनेजर सेट कर सकते हो जिसका नाम है ब्रू। ओके। ठीक है, ब्रू। तो ब्रू नॉट ओनली फॉर द मैक, ब्रू आप किसी भी लिनक्स सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, इवन अगर आप विंडोज की बात करो तो विंडोज में भी पैकेट मैनेजर आप डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी पैकेट मैनेजर नहीं होता है। ओके। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें ना कोई एपीटी ना कुछ लाइक एज ए ग्रुप कोई भी इंस्टॉल होता है। ठीक है, विंडोज में बाय डिफॉल्ट कोई भी पैकेट मैनेजर अवेलेबल नहीं होता। विंडोज में अगर आप चाहते हो इस्तेमाल करना देन आपको मैनुअली डालना होगा इसको। तो विंडोज में जो पैकेट मैनेजर अवेलेबल है उसका नाम है चॉकलेटी। नाम थोड़ा सा अजीब है बट उसका नाम है आपका चॉकलेटी। तो देखो, ठीक है, चॉकलेटी। ठीक है, ये एक पैकेट मैनेजर है फॉर द विंडोज ओनली। तो इससे क्या मैं अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या विंडोज को अपडेट कर सकता हूँ? अपडेट कर सकते हो विंडोज को। देखो डायरेक्टली विंडोज अपडेट इसीलिए तो हम लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल ना करना पड़े। हमें विंडोज इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि विंडोज में बहुत सारा कुछ हम लोग ग्राफिकली कर सकते हैं। ओके, आप इसे विंडोज इस्तेमाल कर सकते हो, आप बहुत से टूल्स इससे इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक मान लो कि अगर आप एज ए यूजर हो जो आपको टर्मिनल बहुत चलाना अच्छा लगता है, आपको टर्मिनल का काम करना बहुत अच्छा लगता है, देन आप इजीली आप इसके थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। पैकेट मैनेजर के थ्रू बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो जो ग्राफिकली भी अवेलेबल है, एज ए टर्मिनल भी अवेलेबल होता है।
सर अगर मतलब सिंपली बात ये है कि अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसको मैं सीएमडी से रन नहीं कर सकता, तो उसको मेरे को ऑपरेट करने के लिए एक पैकेट मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं है। देखो पैकेट मैनेजर से ऐसा बहुत सारे टूल्स है, मान लो कि जैसे हाइड्रा, ठीक है, आपको विंडोज में हाइड्रा को सेटअप करना है, तो अगर आपको ऐसे अगर अभी आपको हाइड्रा को सेटअप करना है, तो हो सकता है कि वो हाइड्रा को पैकेज को डाउनलोड करना होगा, देन आपको पाइथन भी चाहिए हाइड्रा को रन करवाने के लिए, हाइड्रा डॉट पाई ऐसा अगर पाइथन भी चाहिए होगा, ठीक है। बट पैकेट मैनेजर, ये जो चॉकलेटी पैकेट मैनेजर, अगर तो इसको रन करोगे तो डायरेक्टली आप टर्मिनल से हाइड्रा को, लाइक ऐसे जैसे हम लोग काली में इस्तेमाल करते हैं, लाइक ऐसे हाइड्रा, तो ये एक बार में रन हो जाएगा। हाँ समझ गया, तो मतलब वो इस काफी सारी चीज को खुद में इंस्टॉल करके रख लेता है एक एग्जैक्टली। साथ में। देन अपडेट करने के लिए, पैकेट्स को अपडेट करने के लिए, पैकेट्स को मैनेज करने के लिए, जैसे मानो कि मेरे यहाँ पे देखो वीएलसी अवेलेबल नहीं है, अगर मैं करता हूँ वीएलसी जो कि अवेलेबल नहीं है, बट नहीं अगर है। आपको विंडोज में काली में अगर वीएलसी इंस्टॉल करें तो सिंपली आप क्या करते हो, एपीटी देन इंस्टॉल देन वीएलसी, है ना। अगर आप जी करोगे तो आपको ये पूछेगा कि आपको वीएलसी इंस्टॉल करना है या नहीं, तो ये 40 एमबी देखो स्पेस नीड 70 एमबी, तो ऑटोमेटिक उसका जो वीएलसी इंस्टॉल हो जाता है। सेम चीज आप अगर आप विंडोज में करना चाहते हो कमांड के थ्रू, देन आपको चॉकलेट इंस्टॉल करना होगा, देन जाके आप वीएलसी को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके ओके समझ गया। ओके, सो ये स्कैन हो गया। ओके, तो हम लोग ने एग्रेसिव हो रहा था ना। ओके, ये एग्रेसिव स्कैन हो रहा है, ठीक है। इन थ्रेड, तो अभी जो हम लोग ने दिखाया था थोड़ी देर पहले कि थ्रेड, ठीक है। अब थ्रेड को ऐसा नहीं कि आपको 4 पे ही सेट करना है, थ्रेड इनमें का जो थ्रेड है, आप थ्रेड को किसी में भी सेट कर सकते हो, ठीक है। इसी को ले लेता हूँ, T4 T1 से लेके आप 4 तक कोई कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और देखो ज़्यादा डिफरेंस, देखो थ्रेड एंड एफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कमांड का थोड़ा सा अंतर है। थ्रेड सीपीयू को ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, एंड फास्ट जो कैपिटल एफ है वो कमांड्स को या फिर बोल सकते हो कि स्कैनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा बूस्ट अप करने की कोशिश करता है, और कुछ नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। उसके बाद आता है आपका, अगर मैं बात करूँ लाइक फायरवॉल की, अगर मैं बात करूँ तो फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, फिर बोल सकते हो कि फायरवॉल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि फायरवॉल है या नहीं, ठीक है, या फिर उस फायरवॉल कैसे काम कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा ट्रिक करना है फायरवॉल को, तो हम लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम का फ्लैग, ठीक है। ये फ्लैग थोड़ा सा काइंड ऑफ बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ, इन मैप में बेसिकली फ्लैग्स होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ लाइक गेम का ऑप्शन दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको फ्लैग्स मिलेंगे। अभी फ्लैग्स होता क्या है, ठीक है, ये सारे, ये सब आपका फ्लैग्स होता है, ठीक है, एस एन एस एफ एस, ठीक है, ये सारे फ्लैग्स होते हैं। अभी फ्लैग स्कैन होता क्या है, ठीक है, आप ये भी एज अ फ्लैग स्कैन कंसीडर कर सकते हो, ये भी एज अ फ्लैग स्कैन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब ये फ्लैग स्कैन होता क्या है, फ्लैग स्कैन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग स्कैन के जरिए हम लोग एक टाइप ऑफ पैकेट हम लोग काली लिनक्स को, सॉरी हम लोग हमारे सिस्टम से एज ए हैकर मशीन से हम लोग विंडोज से भी जो भी हमारे विक्टिम मशीन है उसको हम भेजते हैं टाइप्स ऑफ पैकेट। अभी टाइप्स ऑफ पैकेट होगा क्या, देखो अगर मैं आपको अगर आपको आईपी फ्रेगमेंटेशन दिखाओ, ठीक है, ओके, ये जो फ्लैग है ना, फ्लैग एंड देन फ्रेगमेंट ऑफसेट, बेसिकली ये क्या करता है, ये जो पैकेट है आपके, जो पैकेट ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, फिर किस तरह से काम करेगा, या फिर इसका नेचर क्या है, ये डिफाइन करता है आपका फ्लैग, ठीक है। टोटल 6 फ्लैग्स होते हैं आपके आईपी में। अगर फ्लैग
क्लियर, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये आपके फ्लैग्स है, ठीक है। आर्गुमेंट ऐसी के पुश, रीसेट, सिंक एंड फिन। तो ये फ्लैग क्या करती है, ये टाइप्स ऑफ नेचर दर्शाते हैं आपके जो पैकेट्स है, ये जो आपका जो आईपी पैकेट है, या आपके जो आईपी हेडर्स है, ये आपको तो पता है कि ये हेडर तक आईपी हेडर में बेसिकली ये सारा डिटेल्स बेसिक होना ही चाहिए। सोर्स पोर्ट, डिसीजन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, विंडो का साइज, अर्जेंट पॉइंट, ये सारे बेसिक डिटेल्स उसके बारे में बताता है कि ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इसका सारा डिटेल्स बताता है। लाइक आपके डिलीवरी पर्सन की तरह के सारा डिटेल्स आपको बताता है कि ये है क्या, है ना। देन ये जो है अर्जेंट, एसीके, पुश, रीसेट, सिंक, फिन, ये टाइप्स ऑफ पैकेट्स, यानी कि मैं पैकेट का मैं जो पैकेट बना रहा हूँ, पैकेट जो मैं भेज रहा हूँ, इसका नेचर क्या है, ये किस टाइप के पैकेट है, ये रीसेट पैकेट है क्या, सिंक पैकेट है क्या, फिनिश पैकेट है, फिर के आर्गुमेंट एक्नॉलेजमेंट पैकेट है, ये मैं नेचर उस फ्लैग के जरिए में बताता हूँ सिस्टम को। एंड इसी फ्लैग को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करके हम लोग फायरवॉल को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई फायरवॉल है या नहीं, ठीक है। तो एनमैप का जो भी फ्लैग स्कैन है ना, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि एनमैप का फ्लैग स्कैन से हम लोग बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो कि हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई फायरवॉल है या नहीं, ठीक है। एनमैप से हम लोग डायरेक्टली फ्लैग से हम लोग बाईपास नहीं करते, बट हम लोग फ्लैग से बोल सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी टाइप के सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको फ्लैग की कमांड दिखाऊँ तो एनमैप एंड देन डैश एसएक्स, ठीक है। अभी एसएक्स है क्या, एसएक्स है कि क्रिसमस स्कैन, अब सॉरी एक्समस स्कैन, ठीक है। अब एक्समस या फिर क्रिसमस स्कैन भी लोग बोलते हैं बहुत सारे। अब ये एक्समस या क्रिसमस नाम आया कैसे किसी को भी नहीं पता, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिसमस के टाइम पे ये इन्वेंट हुआ था, तो उसके लिए क्रिसमस स्कैन कहते हैं इसे, ओके। सो अगर मैं इसका स्कैन का रिजल्ट दिखाऊं तो हो सकता है कि बहुत बार आपको रिजल्ट ना मिले, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि आपको रिजल्ट ना मिले, तो फ्लैग का जो नेचर, ये हमेशा नेचर ना थोड़ा अजीब ही करता है। एंड एवरी नेचर के साथ आपको ये समझना होगा कि वहाँ पे कोई फायरवॉल है या नहीं, ठीक है। अगर आप कहीं पे रिजल्ट ना मिले तब आपको समझना होगा कि फायरवॉल है, अगर वो कहीं पे रिजल्ट मिल रहा है तब आपको समझना होगा कि फायरवॉल नहीं है, ठीक है। सॉरी, अगर आपको कहीं पे रिजल्ट ना मिले, किसी फ्लैग में अगर आपको कभी कभार होता है कि ऐसा कोई फ्लैग है जैसे कोई एसएक्स, देखो कि इसमें कोई भी आपको रिजल्ट मिला ही नहीं, इसका मतलब कि इसमें कोई फायरवॉल नहीं है। अगर रिजल्ट मिलता तब आपको लगता है कि इसमें फायरवॉल है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑपोजिट होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो स्कैन परफॉर्म करता है, तो फ्लैग्स का जो रिजल्ट होता है ये थोड़ा सा अजीब होता है, थोड़ा सा ऑपोजिट टाइप होता है। इधर से आपका आता है आपका एसएफ, एसएफ यानी कि फिन फ्लैग है, फिर बोल सकते हो फिनिश फ्लैग। अगर इसमें भी देखो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला, ठीक, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है। देन आता है आपका एसएन, ठीक है, यानी कि नल स्कैन, ठीक है। यानी कि नल स्कैन है कि ये जो पैकेट मैं भेज रहा हूँ फायरवॉल को, सॉरी मैं सिस्टम को भेज रहा हूँ, तो ये पैकेट के अंदर कुछ नहीं है, इसका नेचर खाली है, क्या कुछ नहीं, ब्लैंक पैकेट है, यानी कि इसका जो हेडर्स का साइज है वो 0 होगा। एंड लेट्स सी कि इससे कुछ रिफ्लेक्ट होता है या नहीं। ओके, तो इससे भी कुछ नहीं रिजल्ट मिला, ठीक है। तो फ्लैग का जो भी मतलब जो भी फ्लैग डिटेक्शन में जो भी हम लोग फायरवॉल डिटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल स्कैनिंग से। इसके बाद आपका ऐसे हो गया, ओके। और दो स्कैन आता है जिसका नाम का एस एम, इसको बोलते हैं माइमॉन स्कैन या फिर मीमॉन स्कैन, ठीक है। ये दोनों और एक स्कैन आपका एस एम एंड और एक आता आपका
SW। अब देखो विंडोज स्कैन एंड विमोट स्कैन ये जो था ये दोनों स्कैन अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये दोनों डिप्रेस हो चुके हैं कि सॉरी सप्रेस हो चुके हैं यानी कि बंद हो चुका है ये दोनों स्कैन बंद हो चुका है इन द सेंस जब आपके लाइक 2000 के एरा या फिर 90s के एरा जब विंडोज का लाइक एडवर्टाइजमेंट या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा क्रेज था तो उस टाइम Nmap में ये दोनों स्पेशल फ्लैग आपको इस्तेमाल आया यानी कि स्पेशल ये ऑप्शन ऐड किया गया फॉर ओनली फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओके बट धीरे धीरे ये स्कैन यानी कि विंडोज 7 आते आते ये दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों लाइक काम नहीं करते बेसिकली अभी फिलहाल ठीक है काम इन द सेंस नहीं करते देखो अगर मैं इसको स्कैन करूंगा तो ऐसा नहीं कि ये रन नहीं होगा रन होगा बट आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मतलब इसमें मिलना चाहिए बेसिकली ये भी फायरवॉल को बाईपास बोल सकते हो फायरवॉल डिटेक्शन के लिए भी ये भी इस्तेमाल होता था बट ये उतना अच्छे से मॉडर्न सिस्टम पे काम नहीं करता है अगर आप कभी भी अगर हो सके विंडोज 98 में विंडोज 2000 आप कहीं से अगर लाइक सेटअप कर पाओगे देन उसके लिए ये सिस्टम शायद ही अच्छे से काम करेगा SM एंड SW ये दोनों फिलहाल लाइक बंद ही हो गया लाइक ज़्यादा इस्तेमाल इसमें होता ही नहीं है ओके गाइस अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन गाइस एनीवन अच्छा ये तो ये वाला जो मैप कर रहा हूँ इसके लिए तो मुझे टेक्निकली मुझे उस पर्टिकुलर राउटर में और उस पर्टिकुलर रेंज पे होना चाहिए राइट तो उसके बाद ही मैं स्कैन कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली राइट हाँ तो एक तो आई बिलीव ये अब नेक्स्ट चैप्टर या फिर कभी दूसरे क्लास पे लोगे वेयर जब मैं देख दूसरे राउटर पे और मैं बाकी अलग पूरे एक अलग नेटवर्क को स्कैन करके आई एम ट्राइंग टू ट्रेस अ पैकेट দেখো ইটস কান্ট দেখো ये পসিবল নেই ঠিক আছে তুমি কখনোই বাইরে একটা অন্য নেটওয়ার্ক বা অন্য রাউটারকে ডাইরেক্টলি স্ক্যান করতে পারবে না ওর ফায়ারওয়াল ডাইরেক্টলি তোমাকে ব্লক করে দেবে কারণ অ্যাজ এ আউটার ইউজার অ্যাজ এ যখন তুমি অন্য নেটওয়ার্কে স্ক্যান করছো তখন অ্যাজ এ তুমি একটা আউটার ইউজার রাইট ফ্রম দ্য লাইক বাইরের ইউজার তুমি একজন হ্যাঁ না करेक्ट তো তুমি যখন ওই সিস্টেমটাকে স্ক্যান করার চেষ্টা করবে যখন অ্যাক্টিভিটি যখন একটু সাসপিশিয়াস মনে হবে কারণ এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি একমাত্র ইন্টারনেট নেটওয়ার্কেই সাধারণত হয় এবার তুমি যখন বাইরের থেকে স্ক্যান করার চেষ্টা করবে ফায়ারওয়াল তোমার প্যাকেট ব্লক করে দেবে অথবা ফায়ারওয়াল তোমাকে তোমার পুরো আইপি রেঞ্জটাকে ব্লক করে দেবে বা ফায়ারওয়াল হতে পারে যদি ব্লক না করতো ফায়ারওয়াল তোমাকে কোনো রেজাল্ট দিবে না যে রেজাল্টটা তোমার দরকার তাহলে তার মানে দেন আমাকে কিছু করে আগে ওই ওয়াইফাই এর পাসওয়ার্ডটা নিয়ে আমাকে আগে ওয়াইফাইটাকে ওই রেঞ্জ ওই রাউটারে ঢুকতে হবে উইথ দ্যাট পার্টিকুলার হোয়াট এভার দ্য পাসওয়ার্ড ইজ আর তারপরে আমি ওই রাউটারের থেকে আমি ফের একটা স্টিল স্ক্যান স্টার্ট করতে পারবো রাইট এক্স্যাক্টলি ওকে বাইরের থেকে কখনোই কোনো একটা নেটওয়ার্কে স্ক্যান করা পসিবল না কারণ if you're talking about as a professional area or if you're talking about as a like commercial area then वो लोग क्या करते हैं बहुत सारे लाइक DMZ या फिर फायरवॉल को सेटअप करके रखते हैं एंड वहाँ पे IPS IDs वगैरह बहुत कुछ होता है तो अगर आप कभी भी अगर ऐसे एन में आपको डायरेक्टली स्कैन कर दोगे उस सिस्टम पे या फिर उस IP को या फिर उस रेंज को तो हो सकता है कि DMZ या फिर आपका फायरवॉल जो है वो डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर दे सो इसीलिए हाँ 2-3 चीज़ आप कर सकते हो जैसे लाइक एज अ फ्लैग स्कैन कर सकते हो फिर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो फायरवॉल है या नहीं बट एज अ पोर्ट स्कैनिंग अगर आप करने जाओगे तो आपके पैकेट्स लॉस होंगे फिर आपका पैकेट का रिस्पांस नहीं मिलेगा या फिर फायरवॉल आपको शायद डायरेक्टली ब्लॉक ही कर दे तो आपको जो आपको सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा दैट इज द मेन प्रॉब्लम सो दैट्स व्हाई एज अ हैकर आपका सबसे पहला मोटिव या फिर पहला इंटेंशन ये होना चाहिए कि उस नेटवर्क के साथ आपको एज ए यूजर जुड़ना है वंस आप एक बार जुड़ गए देन यू कैन डू एनीथिंग दैट्स व्हाई आपको एज ए सोशल इंजीनियरिंग हो या फिर आपको किसी भी तरह से किसी भी ट्रिक से किसी भी तरीके से आपको बस नेटवर्क के अंदर जाना है okay. So there are lots of different types of option तो ऐसा आप बहुत सारे स्कैन Nmap के द्वारा परफॉर्म कर सकते हो सो नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट एज ए स्क्रिप्ट स्कैन ठीक है तो अगर मुझे मान लो कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा इंटेंसली स्क्रिप्ट को स्कैन करना है देन यू हैव टू बी नो प्रॉपरली दैट हाउ टू यूज द स्क्रिप्ट्स ओके अगर मैं स्क्रिप्ट लोकेशन में लूँ जैसे देखो लास्ट टाइम उन्होंने जो इस्तेमाल किया था
एग्रेसिव स्कैन, उसमें भी आपका एससी स्क्रिप्ट रन हुआ था, है ना। जो एग्रेसिव वॉइस डिटेक्शन यहाँ पर भी रन हुआ था, एंड उसके साथ भी एक स्क्रिप्ट रन होता है जिसका नाम है, जो पर्टिकुलर ये जो सेक्शन ये रन हुआ था आपका एससी ऑप्शन के लिए, ओके। एंड यहाँ पे देखो कि होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट, यानी कि ये कौन सा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया था, ये बेसिकली अगर मैं जाऊँ सीटी, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एलएस, देन अगर यहाँ पे होस्ट करो, ठीक है, नहीं होस्ट एसएमबी है, होस्ट स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली एसएमबी ओएस डिस्कवरी को इस्तेमाल किया था, एसएमबी हाँ ये रहा एसएमबी ओएस डिस्कवरी, ये वाला ये जो स्क्रिप्ट है एसएमबी ओएस डिस्कवरी, इसी को ही होस्ट स्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। होस्ट स्क्रिप्ट के अंदर वही स्क्रिप्ट्स होते हैं जो बहुत मिनिमल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस स्क्रिप्ट्स नहीं होते, वही आपके होस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर आते हैं। अब मान लो कि लेट्स सपोज कि मुझे इंटेंस स्क्रिप्ट्स करना है, तो इनमें में आप इनिशियली एक स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, वो है बुलियन। अब ये बुलियन होता क्या है, देखो बुलियन, अब नाम से को लग रहा है, पता चल गया कि बुलियन यानी कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर, है ना। तो एन बार में वल्नरेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हो थ्रू दिस बुलियन। अब बुलियन अगर आप रन करोगे, बुलियन एक ही एकलौता स्कैन है, देखो अगर आपको स्क्रिप्ट को रन करना है तो कैसे रन करोगे, आपको मेंशन करना होगा एनमैप के अंदर -sc एंड देन स्पेस, आपको स्क्रिप्ट का नाम, आप ये भी ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, या फिर script आप ऐसे भी स्क्रिप्ट को नाम मेंशन कर सकते हो, या फिर आप =2 से ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वे आप जिसे स्क्रिप्ट का नाम मेंशन कर सकते हो। हाँ, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि स्क्रिप्ट का नाम जब भी आप मेंशन करोगे तो आपको .nec तक नहीं लेना, .nec से पहले बस आपको इतना तक ही लेना, .nec आपको बस इग्नोर कर देना है .nc, ठीक है, क्योंकि एनमैप समझ जाता है कि आप कौन सा स्क्रिप्ट ले रहे हो, तो आपको .nc मेंशन नहीं करना है। देन आपको स्क्रिप्ट का नाम, मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ vuln, ठीक है। अब ये वुलन रिलेटेड एग्जैक्ट कोई स्क्रिप्ट आपके पूरे एनमैप में नहीं है, तो ये है क्या, देखो वुलन एक बोल सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है। वुलन यही एक लौता एक स्ट्रिंग है जिसे अगर मैं स्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल करूंगा तो वो जितने भी HTTP बेस्ड वुलन स्क्रिप्ट्स है सबको रन करवाएगा एक साथ। देखिए अब जितने भी HTTP बेस्ड वुलन स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, ये सबको 1 by 1 ये रन करवाएगा, ठीक है। HTTP बेस्ड, उसके बाद SMB, ठीक है, जितने भी, बट बेसिकली ये जो पूरा टोटल कैप्चर करते हैं ये इतना SMTP से लेके टोटल ये इतना सा HTTP तक, ये टोटल इतने सारे स्क्रिप्ट्स को ये एक ही बार में वो लोड करवा देता है एनमैप के अंदर जब भी आप स्क्रिप्ट के स्कैन को रन करवाते हो। कैसे, देखो अगर मैं इसे रन करवाता हूँ, ठीक है, ये एकलौता एक ही यही स्क्रिप्ट का एक स्ट्रिंग है जो आप मेंशन कर सकते हैं, ऐसा ये बोल सकते सेट ऑफ स्क्रिप्ट को एक बार में रन करवाता है, बट दूसरा कोई भी और नहीं होता। अगर आपको दूसरा स्क्रिप्ट को रन करवाना है तो आपको मैनुअली इसका नाम पूरा लिखना होगा, बट वुलन ही एकलौता स्क्रिप्ट से, आई मीन वुलन ही एकलौता आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रिंग है जिसके जरिए आप इतने सारे स्क्रिप्ट को एक बार में रन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये रन हो रहा है। एंड अगर आप देखो कि वन अंडरगोइंग स्क्रिप्ट स्कैन, ओके, एक चल रहा है एंड एक के बाद एक वो स्क्रिप्ट को लेता है एंड वो चेक करते हैं कि क्या ये स्क्रिप्ट उस सिस्टम के लिए कॉम्पैटिबल है या नहीं। अगर वो कॉम्पैटिबल नहीं है तो उसे इग्नोर कर देता है, दूसरा स्क्रिप्ट लेता है। फिर से वो चेक करते हैं कि क्या वो कॉम्पैटिबल है या नहीं, फिर से वो दूसरा तीसरा चेक लेता है कि अगर वो कॉम्पैटिबल है तो उससे स्कैन करवाता है, अगर वो कॉम्पैटिबल नहीं है तो उसको इग्नोर करके सेकंड स्क्रिप्ट में वो चला जाता है। इस तरह से बुलियन का जो ये पूरा चीज़ है ये ऐसे ही रन होता है। ओके, एंड इसी को ही अगर मैं और एक जगह पे रन करके अगर आपको और एक कमांड दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल अगर आपको दिखाऊं एक ऑप्शन जिसका नाम है V फॉर वर्बोस। अब वर्बोस क्या होता है? वर्बोस होता है वन टाइप ऑफ लॉग यानी कि अब जब भी एनएमएम को कुछ करते हो, नॉर्मली देखो, नॉर्मली अगर हम लोग एनएमएम स्कैन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एग्जैक्ट पूरा डेटा दिखा जाता है, ठीक है, बट एग्जैक्ट इन द सेंस आई मीन जब भी एनएमएम को स्कैन कर परफॉर्म करते हो तो आपको एक बार में पूरा डेटा दिखाया जाता है ना, बट वी ऐड करने से
अब ये देख पाओ कि nmap बिहाइंड द सीन कर क्या रहा है, कैसे फाइंड कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे धीरे 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 वो इतना सारा कोड को फाइंड किया, देन जाके आपको ये एज अ सिस्टमेटिक वे पे आपको ये दिखा रहा है। तो बैकग्राउंड पे वो कर क्या रहा है, वो सारा चीज आप देख सकते हो। तो ये वी जरूरी है कि वर्बोस या फिर वी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऐसा पोर्ट्स जो आपको नहीं दिखाता है फ्रंट पे, बट वो बैकग्राउंड पे nmap के द्वारा फाइंड हुआ है। ठीक है, बट फॉर द सिक्योरिटी रीजन आपको बिहाइंड द सीन आपको आई मीन फ्रंट में आपको नहीं दिखाया जाता है। ऐसा बहुत सारा पोर्ट होता है। ठीक है, इसका लाइक ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो पॉसिबिलिटी है लाइक एज 10% या फिर 5% ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि ऐसा कोई फोटो nmap पे फाइंड किया वो आपको नहीं दिखाया। 10 to लाइक 5 to 10% पॉसिबिलिटी होता है, बट फिर भी अगर एक पॉसिबिलिटी रहता है तो हम लोग फिर भी उसे रन करवाते हैं। सो इसलिए डैश भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो कि वो nmap बैकग्राउंड पे क्या क्या रन करवा रहा है, फिर क्या क्या वो कर रहा है बैकग्राउंड पे, वो भी जानने के लिए हम लोग करते हैं। देखो nmap को बाय डिफॉल्ट में जब भी रन करवाओ देखो ARP पिंग स्कैन वो करेगा ही करेगा। सो इसी चीज को हम लोग को बाईपास करने के, हम लोग को डिसेबल करने के लिए हम लोग नो पिंग स्कैन करते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डैश और एक वी ऐड कर देता हूँ तो इसको बोलता हूँ डबल वर्बोस या फिर मोर वर्बोसिटी बोल सकते हैं इसे, मोर वर्बोसिटी या फिर डबल वर्बोस इसे आप बोल सकते हो। इससे क्या होगा कि और भी ज्यादा इंटेंसली आपको ये बोल सकते हो कि लॉग फाइल और भी क्लियरली या लॉग फाइल आपको दिखाएगा कि ये कर क्या रहा है। ओके, एंड इसी चीज को अगर स्क्रिप्ट के साथ अगर मैं वीवी को ऐड कर देता हूँ, सॉरी एक वन डैश एंड दो वीवी, और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, देखो ये अभी पोर्ट को स्कैन किया। ठीक है, ये देखो इतने सारे पोर्ट को फाइंड किया एंड देन एनईसी फिर से एक एनईसी को वो कैप्चर किया। ठीक है, फिर से एनईसी को ये कैप्चर किया एंड देन फिर से एक दूसरा एनईसी फाइल से ये रन करवा रहा है। देखो एक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अबाउट 80% ऑलमोस्ट हो रहा है एंड फिर से जब ये हो जाएगा देन फिर से दूसरा एनईसी स्क्रिप्ट लेगा ये। ठीक है, ऐसा ही ये चलता रहेगा। जो जो सपोर्ट करेगा इससे वो उसको लेते रहेगा, जो जो सपोर्ट नहीं करेगा उससे इग्नोर करता रहेगा। सपोर्ट इन द सेंस कि उस डिवाइस के लिए कॉम्पैटिबल है या नहीं, उस रन से रिजल्ट मिलेगा कि नहीं ये नहीं, उस डिवाइस के लिए कि विंडोज मशीन के लिए ये स्क्रिप्ट कॉम्पैटिबल है या नहीं वो चेक करेगा। अगर कॉम्पैटिबल है तो रन करवा देगा। हाँ, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वी डोंट नो, बट ये रन करवाएगा। देखो एक हो रहा है, देखो एनईसी टाइमिंग एक हो रहा है एंड फिर से और एक हो रहा है। ठीक है, देखो 1 of 2 स्कैन ये चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही एनईसी स्क्रिप्ट्स बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं। अगर मैं रन करो यहाँ पे तो ये चल ही रहा है। देखो 1 अप एंड 1 अंडर गोइंग, तो एक हाथ में है एंड एक रन हो रहा है। इस तरह से स्क्रिप्ट्स रन होता है। सो अगर आपको नहीं पता कि कौन सा स्क्रिप्ट क्या रन करता है तो आप स्क्रिप्ट को मत इस्तेमाल करना, क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट का अलग अलग नेचर होता है। हर एक स्क्रिप्ट को अलग अलग तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हर एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, गाइस समझ में आया? एनी कंफ्यूजन गाइस, एनीवन? नो नो सर। सर। ओके, सर मुझे ये पूछना था, ये पैरेट पे मेरे को वो वर्ड लिस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। लोकेशन सेम है जैसे हमारा
सिस्टम में हमारा काली मशीन पर आता है सेम। ओके, cd यूजर शेयर देन वर्ड लिस्ट एंड देन जो भी आपको rocket.txt पे जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो, ये लोकेशन सेम पैरेट में भी सेम ही है, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट। पैरेट में शायद और एक वर्ड लिस्ट आपको मिलेगा यूजर शेयर एंड देन आपको और एक मिलेगा शायद पैरेट में, वो है आपका सेक लिस्ट। ठीक है, सेक लिस्ट। ओके, वो लोकेशन होता है आपका cd यूजर शेयर एंड देन सेक लिस्ट। मेरे सिस्टम पे नहीं है फिलहाल। ठीक है, एक होता है आपका यूजर शेयर सेक लिस्ट, एक होता है यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, एक होता है आपका यूजर शेयर सेक लिस्ट। काली मशीन पे बाय डिफॉल्ट आपका वर्ड लिस्ट होता है, सेक लिस्ट इंस्टॉल नहीं होता है, बट पैरेट में ये दोनों ही रहता है, यूजर शेयर एंड देन वर्ड लिस्ट एंड यूजर शेयर सेक लिस्ट, ये दोनों ही होता है। बट ये जो भी वर्ड लिस्ट है ये तो इंडियन वर्ड लिस्ट नहीं होगा मे बी। क्या क्या? इंडियन वर्ड लिस्ट तो नहीं होगा ये। नहीं 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 नहीं, ये टोटली जस्ट बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ पासवर्ड, जो कि कॉमनली पूरे वर्ल्ड वाइड में ये रोटेशन होता है। तो अगर कोई भी टारगेट है तो उसका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद कस्टम वर्ड लिस्ट तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसके लिए। एग्जैक्टली इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आपको किसी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो तो उससे एक वर्ड लिस्ट आप क्रिएट करो, ताकि फ्यूचर में आपको कहीं पे अगर ब्रूट फोर्स करना हो, मान लो किसी कैफे शॉप का आपको वाईफाई को ब्रूट फोर्स करना है, तो अगर आप rocket.txt से करोगे तो वो जिंदगी में कभी भी वो क्रैक नहीं होगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स में एक्चुअली हम लोग करते क्या है, एक सेट ऑफ वर्ड लिस्ट है जिसके अंदर एक ना कहीं पे पासवर्ड तो छुपा होगा ही। हाँ, हमें नहीं पता, बट ब्रूट फोर्स के जरिए हम लोग को फाइंड करते हैं। यस यस। तो जो आपके एरिया में जो कैफे है उसके अंदर क्या पासवर्ड होगा, वो तो उस कैफे रिलेटेड होता है ना, कि यस यस, या कैफे तो का रिलेटेड टू कैफे होगा या तो उसके रिलेटेड टू ऑनर होगा। हाँ एग्जैक्ट वही होता है। तो rocket.txt को तो वो नहीं पता, rocket.txt तो लाइक बोल सकते हैं कि सेट ऑफ वर्ड है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में वो एक कॉमनली इस्तेमाल होता है। यस यस। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, देन उसी इन्फॉर्मेशन से देन आप ब्रूट फोर्स को एक वर्ड लिस्ट बनाओ, देन अगर आपको लगता है कि नहीं ये वर्ड उसमें होना चाहिए, आप खुद से भी डाल दो, आप डिफरेंट टूल से बना सकते हो, लाइक क्रंच से भी बना सकते हो वर्ड लिस्ट। एक बार टूल का नाम बताइए सर। क्रंच। ये ग्राफिकली और सीएमडी दोनों ओपन है। क्रंच नहीं, क्रंच आपका टर्मिनल पे अवेलेबल है। क्रंच ये बेसिकली वर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ओके ओके। तो एनएसी स्क्रिप्ट, तो ये जो स्क्रिप्ट है इसमें देखो 1 of 5, ठीक है 1 of 2, ओके। तो ये स्कैन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब देखो थ्रेड्स 3 एंड 3 यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो एक खत्म होने के बाद दूसरा खत्म होने के बाद तीसरा, तो इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ स्क्रिप्ट्स यहाँ पे रोटेशन होते रहते हैं एनवेब में। सर अगर कभी मैं एनवेब से नेटवर्क स्कैन कर रहा हूँ और फायरवॉल मेरे को पकड़ लिया, फिर मैक चेंज कैसे करूँ मैं? देखो फायरवॉल अगर आपको पकड़ता है, अब अपने मैक को चेंज कर सकते हो, अपने आईपी को चेंज कर सकते हो। आईपी तो स्पूफ अप कर ही सकते हो, ठीक है, आईपी स्पूफ करना आसान था, बट मैक अगर आप इस्तेमाल करते हो तो मैक चेंजर नाम का एक टूल आता है, बहुत पॉपुलर टूल है। मतलब अगर फायरवॉल ब्लॉक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आईपी से करेगा या तो मैक आईडी से करेगा। हाँ, अब वो मतलब स्पेशली कोई हार्डवेयर आईडी क्रिएट करके उसको ब्लॉक नहीं करता है। नहीं, ठीक है, बट ज्यादातर केस में क्या होता है कि लेटेस्ट अगर मैं रिसेंट सीनियर की बात करूँ तो वो लोग डायरेक्टली मैक को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि लोग आईपी स्पूफ करते हैं, फिर आईपी को बदल देते हैं, बट मैक को बदलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता ना, क्योंकि आपका हार्डवेयर सिग्नेचर होता है। सो इसीलिए आप ये टूल इस्तेमाल कर सकते हो जो काली के लिए ही अवेलेबल है, मैक चेंजर। ये टूल अच्छा है, मतलब काली में भी बहुत अच्छा टूल है आपका, एपीडी इंस्टॉल मैक चेंजर सब कर सकते हो ये टूल से। ये मैक चेंजर क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली चेंज करता है या उसको बताना पड़ता है कि भाई चेंज करो अब तो? नहीं, उस आपको बताना, देखो आपको डैश एम करने से आपको एक मैक आईडी आपको देना होगा, ओके। देन जाके वो आपको, तो मैं चाहता हूँ कि रैंडमली वो मेरे को दे दे, फिर रैंडम हाँ कर सकते ये हो, -r मार दूं हाँ हाँ अब इसे भी कर सकते हो। तो वो अपने हिसाब से कोई सा भी एक मैक आईडी मेरे को असाइन कर देगा। हाँ देखो मैनुअली क्या होता है कि मान लो कि मुझे पता है कि एक ऐसा यूजर है जो सिस्टम के अंदर है, उस नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, बट उसका मुझे मैक एड्रेस पता है, तो अगर आप उसे डाल दो तो मैक एड्रेस पे, तो फायरवॉल को लगेगा कि नहीं अच्छा ये तो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर है, तो इसको मैं जाने देता हूँ, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, मतलब उसको भी घुमा सकते हैं। बट मैक चेंजर ऐसा जो टूल, जितने भी टूल्स है जो मैक चेंजर रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से बाय मिस्टेकली अगर आपके डिवाइस के ओरिजिनल मैक एड्रेस अगर टेम्पर हो जाता है इस टूल से, तो थोड़ा सा डिवाइस में प्रॉब्लम आ सकता है।
तो बट वो होगा कैसे, क्योंकि मैं तो ये वर्चुअल पे चला रहा हूँ, फिजिकल पे तो चला नहीं रहा हूँ। नहीं, देखो मैक एड्रेस क्या होता है कि आपके डिवाइस के लिए, देखो मैक एड्रेस से क्या होता है कि डिवाइस अपना आइडेंटिफिकेशन हर पूरे सिस्टम में, पूरे नेटवर्क में आता है। अगर किसी भी लाइक मान लो कि एज आपका वाईफाई अडेप्टर, आप उसका मैक एड्रेस चेंज करते हो, तो किसी भी कारणवश अगर वो मैक टेम्पर होता है, हाँ। तो प्रॉब्लम होता है कि आपका वाईफाई अडेप्टर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका ड्राइवर कहीं पे ऐसा ही नहीं कर पाएगा कि ये डिवाइस है क्या, ये कोई वाईफाई एडेप्टर है या फिर कोई तो ठीक एनएससी है, कार्ड फिर है। मैं अगर अपने फिजिकल पीसी पे ड्राइवर को रीइंस्टॉल कर दूं तब तो फिक्स हो जाएगा ना वो। देखो अब एज ए हैकर हमारा सारा चीज तो पोर्टेबल में चलता है ना, हम्म। क्योंकि अब एक फिक्स जगह पे तो आप रह नहीं सकते, यस यस। तो दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। ठीक है। कर सकते हो, अब देखो पर ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, तब मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि डिवाइस मतलब जो विंडोज है, अभी हम जुआ अब बड़ी चांसेस है कि मतलब वो हैम्पर हो सकता है। हो सकता है चांस, बट हाँ हाँ अभी तो लेटेस्ट के होगा बाद तो तो होगा, होता क्या नहीं है। करेंगे। देखो अगर थोड़ा सा इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रिसाइजली इस टूल को इस्तेमाल करना चाहिए, हम्म। थोड़ा सा ध्यान से, मतलब आप ऐसे नहीं अचानक से आप वाईफाई अडेप्टर को निकाल दिया फिर ऐसा अचानक से काली को बंद कर दिया, नहीं, आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग एग्जिस्ट प्रोसेस करते हैं। हाँ मतलब तो हम लोग मैक एड्रेस को ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते क्या? एज्यूम इन द सेंस? लाइक मेरा जो डिवाइस का मैक एड्रेस है वो तो है। हम्म Let's say if अगर मुझे किसी को अटैक, किसी डिवाइस पे अटैक करना है और हम्म मुझे एक अज्यूम, तो एक होता है ना, जो मैं एक काइंड ऑफ ए टेम्पररी मैक एड्रेस का एक लेयर बनाया हूँ जिससे मैं अपने मैक एड्रेस को शूट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर डिवाइस में। मेरा हाँ मैक एड्रेस नीचे जो है अंडरलाइन द लेयर जो है वो मेरा मैक एड्रेस सेम है, ठीक है। मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं एक टेम्पररी लेयर बनाया हूँ जिसके थ्रू में ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेस जो मुझे मिल गया है कि ये तो ट्रस्टेड डिवाइसेस है, और इसी मैक एड्रेस को मैं थ्रू नेटवर्क शूट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर डिवाइस को ये बताने के लिए कि आई एम द जेन्युइन यूजर। हाँ यही होता है, नॉर्मली यही होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभार अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपका सिस्टम अचानक से बंद हो गया या फिर अचानक से अपने आई मीन हार्डवेयर को फोर्सफुली निकाल लिया कहीं से, ठीक है, तो उसमें होता है कि रैम में डेटा सेव हो जाता है, ठीक है, रैम में ना वो मैक एड्रेस सेव हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि तब आपके डिवाइस बार बार आपको ये डिवाइस दिखाएगा नहीं, ये तो मैक एड्रेस आपका डिवाइस का मैक एड्रेस ये है, बट जो ओरिजिनल लेजिटिमेट मैक एड्रेस है वो डिटेक्ट होना थोड़ा सा तब दिक्कत होता है, समझो। तो इसलिए थोड़ा सा अगर जब भी आप ऐसा टूल इस्तेमाल करते हो ना, तो थोड़ा सा लाइक एज ए स्टेप बाय स्टेप जैसा इंटर करते हो, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एग्जिट प्रोसेस भी आपको थोड़ा सा वैसे ही करना है। आपको अचानक से सिस्टम को बंद नहीं कर देना है, फिर अचानक से डिवाइस को आई मीन निकाल नहीं लेना है, थोड़ा सा इशू होता है उसमें थोड़ा। अदरवाइज अच्छा मतलब नॉर्मली कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बस आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस मेंटेन रखना, बाकी सब कुछ सही है। ओके तो फाइनली हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। देखो कि थोड़ा सा ये टाइम ले लिया स्कैन होने में, अगर आप ऊपर में जाओ पोर्ट, एंड अब देखो ये सारे जितने भी पोर्ट स्कैन मुझे दिया ये सब वल्नरेबल रिलेटेड ही स्कैन मुझे दिया है, यानी कि स्टोरेज चेक, ठीक है। देखो स्टोरेज चेक या फिर आपके डीडोस अटैक के तहत ये थोड़ा सा वल्नरेबल है, तो यहाँ पे डिटेल्स भी बताया गया है, राइट। देन फिर से देखो वल्नरेबल क्या बताया, एक एचटीटीपी वुलन समथिंग कुछ ये लिया है, एंड उसके पहले देखो एचटीटीपी स्टोर्ड एक्सेस ये भी स्क्रिप्ट लिया था, बट उसने कुछ फाइंड कर नहीं पाया, प्रोसेस स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं है, कुछ जेसन पी एंड पॉइंट्स नहीं है, कुड नॉट फाइंड एनी डॉम बेस्ड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग कुछ उसको मिला नहीं। देन उसके बाद एचटीटीपी वुलन एक सीवी लिया, ठीक है, जो कि वल्नरेबल है। क्या वल्नरेबल, अपाचे बैट रेंज फिल्टर डीडोस, ओके ये भी वल्नरेबल है। एंड उसके बाद ये डिटेल्स भी बताया गया कि क्या वल्नरेबिलिटी है उसमें, एंड देन वर्डप्रेस यूजर्स का भी एक स्कैन उसने किया था स्क्रिप्ट लेके, देन बट वर्डप्रेस यूजर तो है नहीं यहाँ पे सिस्टम पे, तो वो रन हुआ नहीं, ठीक। देन एचटीटीपी सर वो बताएंगे क्या, अब बोल रहे थे ना डीडोस हो जाएगा एनमैप से, बट वो होता कैसे? समझे ठीक से बोलो। आपने बोला था ना एनमैप से आप डीडोस भी कर सकते हैं। हाँ इनमें से डीडोस कर सकते हो, आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन भी कर सकते हो। आप अपने विंडोज 7 के आईपी पे एक बार डीडोस चला के दिखा सकते हैं, ओके ओके, अगर लेंदी प्रोसेस ना हो तो। लेंथी प्रोसेस तो नहीं है एक्चुअली, टाइम का थोड़ा सा कंज्यूमिंग है। ओके ओके मैं दिखाता हूँ। देखो इनमें पर डीडोस के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना होगा। ओके स्क्रिप्ट, देन आपको एक डीडोस के लिए स्क्रिप्ट चाहिए जो कि है बेसिकली एंड इनमें से आपका स्क्रिप्ट आता है आपका
स्क्रिप्ट है जिसका नाम है आपका स्लो लॉरिस, ठीक है। सॉरी करेक्ट, ठीक है। स्लो लॉरिस ये हम लोग इस्तेमाल करने वाले एचटीटीपी स्लो लॉरिस, इससे आप लोग डीडोस कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके डिवाइस